नमस्ते शिल्पा ताई, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक। स्टार्ट करते कि लाइव हो चुका है। सो अभी जस्ट सर भी आए हैं, बाकी लोग आएंगे 1-2 मिनट में। प्रमोद कुलकर्णी सर आए हैं क्या? अभी नहीं आए कुलकर्णी सर ने। सर अवर सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर, हाउ आर यू सर? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, प्रणाम सर। नमस्ते सर। कैसे हो सब? सर आपका आशीर्वाद है। आपके पीछे ही मुनि है, ऋषि जी बैठे आपके पीछे ही। यस यस। नागेंद्र जी भी आए। यस यस यस। नमस्ते नमस्ते नागेंद्र जी। उनको भी 1 मिनट में उनको को होस्ट बनाती हूँ, वो शायद। सब संडे का मूड दिखता है सबका आज। यस। मी धावपळ करत आलो, जस्ट 5 मिनिट झाले पोहोचलो मी आता कोपरगावला हो ना। नाशिकवरून। यस सर यस। हाँ बिल्कुल। सर स्टार्ट करें फिर। आवाज से स्टार्ट करूयात का? अजून अटेंडन्स नाही ना, 16चे फक्त। हा तेच म्हणूनच थांबलोय। जस्ट थांबूयात 2 मिनिटं तोपर्यंत धन्वंतरी आपले वंदन। लाडके सर आले, प्रमोद कुलकर्णी सर। खूप येस चांगले येस। सर आहेत ते, पुण्याचे। आपण तोपर्यंत धन्वंतरी वंदना स्टार्ट करूयात। हा करा। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। कुलकर्णी सर नमस्कार। आता येतो सर।
Yes, sir. Yes. So, Namaskar. Good afternoon, everyone. I welcome all of you on this occasion of National Ayurveda Day, Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, Ayush Darpan Foundation, Dehradun, Uttarakhand, India, has organized this international webinar series on Ashtanga Ayurveda. And today is the 8th day of our lecture series, and the topic is Vajikaran, the most important topic. जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आयुर्वेद या मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो इसमें से जो वाजीकरण का जो शास्त्र है, जो हमारे हेल्थ या इनफर्टिलिटी या अनेक सारी समस्याओं से जुड़ा है, इसको लेकर आज यहाँ पर उपस्थित सभी जो भी मान्यवर है, इन सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आयुष दर्पण की तरफ से। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ओकेजन ऑफ today's webinar series. I welcome specially Dr. Ramdas Awad sir, who is the Rashtriya Ayurveda Guru, REV Guru, well-known Ayurveda practitioner, well-known name in the field of Ayurveda, a legendary speaker. Welcome Dr. Pramod Kulkarni sir, MD, Rog Nidan and Kai Chikitsa, who is the Associate Professor in the Department of Panchakarma in Tilak Ayurveda Mahavidyalaya, Pune. I welcome with the Ashokan sir, Professor, PTSR Department, the Suti Tantra Department from Parul University. I welcome today's our Chairman of the session, Dr. Nagendra Charya, who is our Ayush Medical Officer in the Department of Ayush in Karnataka. I welcome Dr. Anupama ma'am, who is also the co-chairman and from Bangalore. So I welcome all of you on this occasion of National Ayurveda Day. We are celebrating this National Ayurveda Day on 2nd November. And Ayush Darpan Foundation has organized a various type of competition. One is their national level PG thesis competition, especially for Kriya Shari department. So here is the details with us. The next one is the international poster making competition, and the subject is a well-known topic, which is most important topic is Deha Prakruti. So anyone can participate in all the both these competitions, like UG students, teachers, practitioners. So I request all of you who are watching this show on Facebook, please convey your students and teachers also. And one more important, on this occasion, we have specially organized a Best Teacher Award. So you can also register for this award. So these are our events, upcoming events on Ayush Darpan Foundation. I welcome all once again on this platform of Ayush Darpan for today's webinar. Now I request my co-moderator, Dr. Arvind Pathak sir, to welcome the dignitaries. जी, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। मैं आचार्य प्रमोद कुलकर्णी सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर मेरे क्लासमेट हैं विराट कुलकर्णी, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है, उनके गुरुजी हैं। तो मैं सर को बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से। तो सर ने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मैं जमदग्नि सर के पास चला गया था। तो मैं पहले कुलकर्णी सर का शुरू करना है क्या मैम? मैम पहले सर का शुरू करना है। अवार्ड सर से ठीक है। डॉक्टर रामदास अवार्ड सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर पहले गोल्ड मेडलिस्ट है भारत महाराष्ट्र के, और जो प्रैक्टिशनर भी हैं, और इनके पास भी मेरे क्लासमेट गए हैं, डॉक्टर प्रवीण बनमेरू, नरेश देशमुख, बहुत सारे लोग प्रैक्टिशनर है जो पूरे मराठवाड़ा में फैले हैं। तो सर ने बहुत सारे लोगों को सिखाया है और निस्वार्थ भाव से सिखाया है। तो सर तो बहुत अच्छे हैं। रामदास अवार्ड सर का तो बहुत स्तुति करने योग्य हैं सर। तो मैं सर को पहले आह्वान करता हूं कि सर आइए और आप शुरू करिए अपना व्याख्यान। मैं आपको वेलकम। यस सर, वेलकम सर। आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजेंडरी स्पीकर, द नेम इज सफिशिएंट। और सर बहुत ही ओजस्वी पर्सनालिटी है सर की, बहुत ही वेल नोन नाम है आयुर्वेद के फील्ड में, और बहुत ही छोटे प्लेस से सर ने स्टार्ट किया है, बट आज पंचकर्म के फील्ड में उनका मतलब सबसे बड़ा नाम उनका ही है। और ये हमारा हॉनर है कि सर यहाँ पर आए हमारी रिक्वेस्ट को मान्यता देकर। सो प्लीज सर स्टार्ट योर सेशन। शुक्र के यहाँ पर जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी पर आपका खास ये सेशन है। सो प्लीज सर। नमस्ते। आज के इस वेबिनार के लिए उपस्थित आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों का मनपूर्वक हार्दिक आयुर्वेदिक स्वागत। खुशी की बात यह है कि पूरे विश्व में, हमारे देश में जो कोरोना पैंडेमिक आया था, यह अब आखिरी कतार पर है। हाथी गया पूछ बची, इतनी स्टेज अभी आई है। और लेटेस्ट कल का सर्वे ये है कि यदि दीपावली को हम संभालते हैं
तो ये पैंडेमिक एंडेमिक में परिवर्तित हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतवासी इसको डेफिनेटली नष्ट करेंगे। तो इसी माहौल को और खुशहाल करने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे महान त्योहार दीपावली नजदीक आ रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माता महालक्ष्मी जी का, श्री धन्वंतरी जी की असीम कृपा आप सभी वैद्यों पर हमेशा बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। एक 4 महीने पहले पुणे के नजदीक जो दौंड शहर है, वहां से एक महिला डॉक्टर का मुझे फोन आता है और वो कहती है कि सर मैं 2 साल पहले श्वेत पदर के लिए आपके पास आती थी, तो मुझे फिर से तकलीफ हो रही, तो क्या मैं आ सकती हूँ क्या? मैंने उसको पूछा 2 साल क्या था, तो उसने कहा 2 साल तो शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन बीच में मैंने IVF करवाया था। तो बड़े खुशी से मैंने पूछा अरे वाह आगे क्या हुआ फिर? तो उसने तुरंत कहा कि नहीं सर 7वें महीने में अबॉर्ट हो गया और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। तो उसी उत्सुकता से मैंने उसको कहा कि तुमने फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं ली? तो उसने मुझे कहा कि सर गर्भावस्था में आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है क्या? आई वॉज शॉक, क्योंकि वो तो एक महिला डॉक्टर थी और उसमें वो आयुर्वेद पदवीधर महिला वैद्या थी। यानी हमारे ही वैद्यों को जिन्होंने स्त्री रोग कौमार वृत्त तंत्र का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उनको ANC आयुर्वेद में होती है या गर्भावस्था के लिए आयुर्वेद में चिकित्सा होती है, ये भी पता नहीं था। पिछले कई वेबिनार में मैंने अपने विचार कुछ आपके सामने रखे थे। इस वेबिनार में भी आज मैं एक मॉरल विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसे कई बार होता है कि अपने पुराने पेशेंट होते हैं और लेकिन कुछ यदि दूसरी कोई बीमारी होती है तो एलोपैथ के पास चले जाते हैं, स्पेशली पीलिया जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। उसके बारे में तो कई बार होता है कि पेशेंट अपना क्रॉनिक पुराना पेशेंट होता है और कि कभी उसे जॉन्डिस हो जाता है तो IV फ्लूइड्स लगाता है और मॉडर्न ट्रीटमेंट लेता है। और जब हम पूछते हैं तो वो कहता है कि आयुर्वेद में भी पीलिया के लिए चिकित्सा होती है क्या? तो ये कई बार होता है। इसलिए आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती यही है कि आज से हम हर एक पेशेंट को 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे और उस पेशेंट को आयुर्वेद में किस किस व्याधि के लिए चिकित्सा होती है, किस किस फैकल्टी में आयुर्वेद उपयुक्त तो होता है, यह उसकी इच्छा हो ना हो उसको बताएंगे। कई बार ऐसे भी हमने देखा है कि अपने घर वालों को भी ये पता नहीं होता है कि ये फैकल्टी, ये पेशेंट इस बारे का है, ये व्याधि का है और इसमें आयुर्वेद में चिकित्सा होती है। तो आज से हम हर एक पेशेंट को 5 मिनट यदि बताते हैं तो कभी ना कभी इन फ्यूचर उस पेशेंट को उस प्रकार की कभी तकलीफ होती है, व्याधि होता है, तो उसे वो याद आता है और वो तुरंत आयुर्वेद के पास आ सकता है। और इनडायरेक्टली इन फ्यूचर हमारे आयुर्वेद के और पेशेंट हर एक फैकल्टी के बढ़ सकते हैं। इसलिए आज से आज हम हर एक पेशेंट को 5 मिनट आयुर्वेद के स्पेशलिटी के बारे में हमेशा बताएंगे। फिर से एक बार 5वीं बार लगातार 5वीं बार आयुष दर्पण के इस मंच से एक अलग सब्जेक्ट लेकर आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आपके साथ चर्चा करने का सुअवसर आज मेरे परम मित्र डॉक्टर नवीन जी जोशी ने मुझे दिया है। इसलिए सबसे पहले मैं नवीन जी, डॉक्टर अरविंद जी, आज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सौ कल्पना एरमे मैडम, मेरे अन्य व्याख्याता मित्र आदरणीय प्रमोद जी कुलकर्णी सर, आदरणीय वैद्य अशोकन सर, उनके साथ साथ आज के चेयरमैन डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर अनुपमा मैडम, इन सभी को मैं मन से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे इस अवसर यहाँ पर प्रदान किया। मुझे याद है कि इसी साल मार्च के महीने में हम सूरत कुछ फंक्शन के लिए गए थे और रात को वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में हम मिलकर चर्चा करते करते खाना खा रहे थे। तो 9:30 बजे मुझे हिमाचल प्रदेश से एक मेरा पेशेंट जो कि दीपक डोगरा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, उसका मुझे फोन आता है और वो बड़े खुशी के साथ कहता है कि सर आयुर्वेद के कारण, आपके कारण मुझे आज पुत्र प्राप्ति हुई है। तो बाकी स्टूडेंट्स को बताते वक्त मैं गतस्मृति में चला गया और मैंने उनको कहा कि ये अजोस्पर्मिया की केस थी और जबकि इसके पिताजी के साथ ये 1.25-2 साल पहले शिरडी आया था और उसके बाद उसे आयुर्वेद का पता मिलने के बाद जब वो कोपरगांव आया
तो उसके पिताजी ने हाथ जोड़कर एक ही कहा था कि मेरे पुत्र को तुम जिंदगी में लाओ, जीवन में लाओ। उसे अजोस्पर्मिया था, 3 महीने की चिकित्सा उसे दी थी और 3 महीने के उपरांत जब काउंट किया, स्पर्म काउंट किया, तो वो 3 मिलियन आया था। और आगे फिर ट्रीटमेंट चलती रही, फिर 26 मिलियन, फिर 37 मिलियन, और 9 महीने के बाद में काउंट 56 मिलियन हुआ था। तब उसके पिताजी फिर से एक बार आए थे और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाते हुए उन्होंने कहा था कि सर मैं जिंदगी भर आयुर्वेद को और आपको नहीं भूलूंगा। तो मैंने पूछा ये तो आयुर्वेद है ही ऐसा शास्त्र कि आयुर्वेद को कोई भुला ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा कजिन जो कि एमडी एलोपैथ डॉक्टर है, उसकी सलाह से आज तक चिकित्सा इसकी चलती रही। हम कई जगह घूमे, दिल्ली गए, नोएडा गए, कई जगह घूमे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन जब बाबा के पास आए, आयुर्वेद चिकित्सा शुरू की, तो अब मेरा बच्चा आज नॉर्मल हुआ है और अब मैं जाके मेरे भाई को बताऊंगा। मैंने कहा क्या बताओगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब उसने मुझे पूछा था कि अब क्या चल रहा है, तो मैंने कहा था कि हम आयुर्वेद शिरडी जाकर आयुर्वेद ले रहे हैं। रेकॉर्डिंग कसं करायचं असतं माहितीये का तुला? और उसने हंसते हुए मुझे कहा था कि यदि सोनार का काम कोई लोहार करे तो कैसे क्या होगा। तो अब मैं जाके उसे कहूंगा कि लोहार भी सोनार से काफी अच्छा काम कर सकते हैं। फिर बाद में फिर नेचुरल तरीके से 2-3 महीने के बाद और मार्च में उसे पुत्र प्राप्ति हो गई। कहने का मतलब ऑडिओ रेकॉर्ड कर, असं किती वेळा तुझा मोबाईल लागतो ना तुला, तो तिकडे डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है डॉक्टर कृपाल जी, आप कृपया म्यूट रखिए। आपका घर का आवाज बाहर आ रहा है मराठी में। आपकी भाषा हम समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को क्यों सुनाना है? कृपया सब लोग म्यूट रखिए, जो लोग नहीं, क्योंकि सर को डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर इतना मेहनत करके आए तो थोड़ा वैल्यू दीजिए ना कृपया। किया है सबको अनम्यूट, मतलब म्यूट किया है सबको। यस प्लीज कंटिन्यू सर, शुरू करिए आप। सर को भी म्यूट कर दिया आपने। शिल्पा मैम, अपने सर को क्यों भी म्यूट कर दिया? हाँ आ गया। हाँ सॉरी। तो भारत ये पुरुष प्रधान देश है, विश्व में बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोक संख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में वर्ल्ड में 2 नंबर पे है। फिर भी इस भारत देश में निसंतान दाम्पत्य की संख्या, निपुत्रिक दाम्पत्य की संख्या काफी लक्षणीय है। कई महंगे उपचार करने के बाद में भी सक्सेसिव रेट काफी कम होता है। तो ईश्वर के इस विषम बर्ताव के बारे में देखकर काफी बड़ा बुरा लगता है। जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो इनकी इनफर्टिलिटी की शुरुआत हमेशा हस्बैंड से होती है, और यदि हस्बैंड नॉर्मल है तो मात्र बाकी सभी चिकित्सा ये उस स्त्री की करनी पड़ती है। भारत पुरुष प्रधान संस्कृति वाला देश है, और इसके कारण यदि किसी वंध्यत्व का कारण कोई पुरुष होता है तो उसके जीवन का दुख, उसके मन का गिल्ट या उसके जीवन का जो नैराश्य भाव होता है, यह शब्दों में व्यतीत करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने करीबन 20 एक ऐसे कपल देखे हैं कि जो स्पर्म काउंट कम होने के कारण या अजोस्पर्मिया के कारण उनका डिवोर्स हुआ है। और आगे चल के मैंने कई वेबिनार में ये भी कहा है कि कोरोना ने आयुर्वेद को सफल सिद्ध होने का मौका दिया है, और इसी कोरोना के कारण पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जितने भी आने वाले हैं उसके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म आयुर्वेद वालों को उपलब्ध करा दिया है। जितने भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है उनमें से स्पर्म काउंट 0 होना, ऐसे भी पेशेंट आजकल प्रैक्टिस में दिखाई देने लगे हैं। मैंने मेरे अभी पिछले 3 महीने में 6 पेशेंट ऐसे देखे कि जिनका कोविड होने के बाद में काउंट 0 हुआ है। तो ये बड़ी उपलब्धि आयुर्वेद के लिए, और इसका केवल और केवल उपाय ये सिर्फ आयुर्वेद में है। आज मैं यहाँ पर मेरे कुछ एक्सपीरियंस समय के पाबंदी के कारण शॉर्ट में बताने वाला हूँ। शुक्राणु की संख्या कम होना जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु की संख्या 0 होना जिसे हम अजोस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु की मोटिलिटी यानी हलचल कम होना जिसे हम एस्टेनोस्पर्मिया कहते हैं, या पूरे शुक्राणु मृत होना जिसे टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं, या वीर्य का गाढ़ापन होना जिसे हाई विस्कोसिटी कहते हैं, ऐसे कई पेशेंट में आयुर्वेद से 100% सफलता हम दे सकते हैं या दे पाएंगे। आज मैंने कितने पेशेंट किए, उनका स्टैटिस्टिकली डाटा क्या है, कितने समय तक ट्रीटमेंट दी है, उनमें एज फैक्टर कितना था, ये मैं कुछ नहीं बताने वाला। सिर्फ आयुर्वेद से ये संभव है, आयुर्वेद से ये होता है, इतना ही आज मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ। साधारण 2003 की एक केस मैं बताने चाहता हूँ कि कोपरगांव के नजदीक एक छोटा सा गांव है। उस गांव से एक मध्यम वयीन एक गृहस्थ हाथ में फाइल लेकर एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे पास क्लिनिक में आए
और आने के बाद उन्होंने फाइल मेरे हाथ में देकर हाथ जोड़कर एक ही कहा कि मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथ में है। सब रिपोर्ट्स जब मैंने देखे तो उनके बेटे की वो सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट थे, उसके शादी को 4 साल हुए थे, 4 साल के बावजूद भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। और पिछले 2 सालों से अहमदनगर पूना जाके वो एलोपैथ ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिनमें उसका स्पर्म काउंट ये नहीं के बराबर था, यानी बिलो देन 1 मिलियन ये काउंट था। और उस दिन उसने कोपरगांव के एक लैब में जब सीमेन एनालिसिस करवाया तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं थे, इसलिए एक फ्लुएंटली उस पैथोलॉजिस्ट ने उसको कहा था कि तुमके शायद लड़का नहीं हो पाएगा, तुम दत्तक के बारे में, एडॉप्शन के बारे में सोचो। और वो सुनकर नैराश्य में, डिप्रेशन में जाकर उसने घर आने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और सौभाग्य से उसके पिताजी ने उसे देख लिया था और उसे बचा लिया था। एक्चुअली ऐसे मुक्त की सलाह देने का कोई भी नैतिक अधिकार उस पैथोलॉजिस्ट का नहीं था, फिर भी उसके उस सलाह के कारण वो डिप्रेशन में चला गया था। और उसने उनको समझाकर फिर वो फाइल लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा आयुर्वेद से 100% होगा, कुछ सक्सेसिव स्टोरीज, कुछ उनको फोटोग्राफ दिखाया और उसको लेकर आने के लिए कहा। उसी दिन शाम को उस 12वीं पढ़े उस बेटे को लेकर आए, उसको मैंने कुछ फोटोग्राफ दिखाए, कुछ रिपोर्ट बिफोर पोस्ट की दिखाया, और आयुर्वेद से होगा तो टेंशन मत ले ले, सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा शुरू कर, ऐसे कहते हुए उसको उस समय पुष्पधनवा रस, मकरध्वजवटी, चंद्रप्रभा रस, सेमोक्लिन एक कंपनी की आती है वो टैबलेट, और सब वाजिकर योग जो शुक्रवर्धक योग होता है, जिनमें त्रिवंग भस्म, शतावरी, अश्वगंधा, विदारी कंद, गोखरू, वीरे शुद्धि, धातु पौष्टिक चूर्ण, यष्टिमदी, हरितकी, ये कॉम्बिनेशन उसको आधा चम्मच शुरू कर दिया। और उसको एक ही सलाह दी थी कि पीरियड के 10वें दिन से 16वें दिन तक ही कांटेक्ट रखना, बीच में नहीं रखना है। पहले महीने की दवा खत्म हो गई, सेकंड मंथ की हो गया, तीसरे महीने के दवा के अंत में जब वो आया तो उसने कहा सर मिसेज की पीरियड नहीं आया है। मैंने उसके पीरियड की जब हिस्ट्री ली तो वो रेगुलर पीरियड आता था और 7 दिन ऊपर हुए थे। मैंने कहा एक बार उसको लेकर आ जाए और एक बार चेक करेंगे। आने के बाद बस मैंने देखी थोड़ी सी जो प्रेगनेंसी की नाड़ी होती है, गर्भिणी की नाड़ी होती है, वो फील हुई और उसको सामने वाले लैब में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भेज दिया। आधे घंटे के बाद जब वो रिपोर्ट लेकर आया तो रिपोर्ट देखकर उनसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट, उसकी यूपीटी टेस्ट की पॉजिटिव आई थी। इन शॉर्ट सिर्फ 3 माह की आयुर्वेदिक चिकित्सा से उस लड़के को अब वो बाप बनने वाला था। यानी एक देहात में रहने वाला और आत्महत्या करने चले उस युवक को जीवनदान देने का और पुरुषार्थ सिद्ध करने का मौका सिर्फ 3 माह की चिकित्सा ने आयुर्वेद से दिया था। वैसे ही कुछ साल पहले एक अहमदाबाद से एक 40 के एज का एक तरुण था और ट्रांसफर होकर वो अहमदाबाद के एक कंपनी से ट्रांसफर होकर कोपरगांव के एक केमिकल फैक्ट्री में आया था और 13 साल के बाद में वो ट्रांसफर होकर आया था। उसकी शादी को 15 ईयर्स हुए थे और उसे भी कोई संतान नहीं थी। जब उसके मिसेस को पिछले 11 सालों से एक असाध्य स्किन डिसीज था और मात्र 2.5 महीने की चिकित्सा से वो स्किन डिसीज तो रोग पूरी तरह से जब नष्ट हुआ तो उसने विश्वास के साथ उसके जीवन का दुख बताया। जब इंक्वायरी की तो उसने कहा सर मेरा काउंट 0 है, शुक्र जंतु 0 है और उसके कारण पिछले 15 सालों से हमें कोई संतान सुख नहीं मिला है, तो आयुर्वेद से कुछ हो सकता है क्या? टू बी फ्रैंक मैं कहना चाहूंगा कि उस समय तक, उस केस तक मेरे पास जितने भी अदुष्परिमय के पेशेंट आए थे, एक में भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला था, जबकि सभी प्रकार के मेडिसिन में चेंज करवाए थे, बस्तान बस्ती, उत्तर बस्ती सभी करवाए थे, लेकिन किसी में भी रिजल्ट नहीं मिला था। इसलिए मैंने उसको कहा कि हम कोशिश करके देखते हैं, सिर्फ 3 महीने चिकित्सा लेनी है, उससे फायदा हुआ तो हुआ, अदरवाइज मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उसने भी हाँ कहा। फिर उसको उस समय यही शतावरी, अश्वगंधा, कवच बीज, विदारे कंद, गोखरू, हरितकी, यष्टि मधु, त्रिवंग भस्म, धातु पौष्टिक चूर्ण, ये कॉम्बिनेशन शुरू किया, मकरध्वज, चंद्रप्रभा, और थोड़ी सी खर्च करने की पॉसिबल इच्छा थी उसकी, तो शुक्र वल्लभ व्रत और पूर्ण चंद्रोदय रस जो कि स्वर्ण युक्त होता है, ये भी उसे चालू किया। और हर रोज घर पर बस्तान बस्ती लेने के लिए कहा। बस्तान बस्ती के लिए हम 1 कप दूध, 2 कप पानी, और उसमें उस समय बकरे के टेस्टिस के 4 पीस कर उसमें डालना है और 1 चम्मच कवच बीज का भरड़ चूर्ण उसमें डालकर, उसमें आधा चम्मच तिक्त क्षीर भरड़, ये कॉम्बिनेशन डाल के मंद आंच पर जलाकर सिर्फ 1 कप दूध बचाना है और कुनकुना होने के बाद में छानकर उसमें 2 चम्मच शतावरी घृत डालकर वो बस्ती लेने के लिए हम कहते थे। और चंदनबाला, शतावरी, अश्वगंधा और सहचर तेल का 30 ml का उत्तर बस्ती, इंट्रा ब्लैडर, वो उसका उत्तर बस्ती हमने शुरू किया।
एवरी 10 डेज उत्तर बस्ती करते थे और वो बस्तान बस्ती घर पर लेते था। इस प्रकार से 2 महीने हो गए और 2 महीने के बाद में मैंने नहीं कहा, फिर भी उसने एक बार सीमेन एनालिसिस करवाया तो उसमें काउंट ये 1 मिलियन आया। उससे ज्यादा मुझे खुशी हुई क्योंकि वहां पे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये दैट वाज माय फर्स्ट केस कि जिनमें काउंट बढ़ना शुरू हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाते हैं। फिर और 2 महीने लेने के बाद काउंट 7 मिलियंस हुआ। तो मैंने उनको कहा कि ऑलरेडी 15 साल तुम्हारे शादी को हुए हैं, तो और काउंट बढ़ने की राह देखने के बजाय हम IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन शुरू करते हैं। उसमें भी लक फैक्टर काफी होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या ऐसे भी नहीं है। तो हम हर महीने IUI शुरू करते हैं और तुम्हारी भी ट्रीटमेंट चलती रही। लक फैक्टर से यदि कंसीव होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फिर उसी महीने से उसके मिसेस को गर्भस्थापक चिकित्सा, फलग्रुत का उत्तर बस्ती उसे किया और गर्भस्थापक चिकित्सा में उसे प्रथम मास वटी, रक्तपाचक वटी, उसको चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी इसलिए भुयामल की घन वटी और शतौरी, अश्वगंधा, अशोक, कुशानुक, अनंत मूल, हरित की एष्टि मधु, सभी गर्भस्थापक बल्य चिकित्सा उसे शुरू कर दी। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। हर महीने हम ओवुलेशन मैनिपुलेट स्टडी करते थे और IUI हमारे हॉस्पिटल में ही करते थे। बराबर चौथे IUI में, अब IUI कितने करने ये भी पेशेंस, मेरा भी 2 या 3 से ज्यादा पेशेंस नहीं है, लेकिन उसके कहने पे चौथा IUI हमने किया था। और चौथे IUI में यानी ट्रीटमेंट के 8वें महीने में उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई, उसका पीरियड मिस हुआ। उस समय भी मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि IUI से और अधुस्पर्मिया की केस नेचुरल तरीके से आगे चलकर IUI से उसे पुत्र प्राप्ति होने वाली थी। आगे पूरी से आयुर्वेद से हो गया और आगे चल के एक सुंदर से पुत्र को उसने जन्म दिया। इन शॉर्ट, आयुर्वेद चिकित्सा को मॉडर्न टेक्निक की जोड़ देने के बाद में सक्सेसिव रेट बढ़ा था। आपको याद होगा कई कॉन्फ्रेंस में, कई वेबिनार में मैं कहते आया हूं कि यदि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस यदि मिलजुल कर अपना अहम भाव, अपना ईगो छोड़कर यदि साथ में काम करते हैं तो इंडिया में इतना मेडिकल पोटेंशियल है कि हम वर्ल्ड में, विश्व में नंबर 1 पर काम कर सकते, राज कर सकते हैं। इस केस से पहले जितने भी पेशेंट हुए उनमें से अनसक्सेस था, इसलिए मैं इस केस के बाद में हर एक को एश्योरेंस देने लगा कि काउंट बढ़ सकता है। लेकिन मैंने ये भी बाद में देखा कि जिनकी टेस्टिकुलर बायोप्सी की होती है और जिनमें स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं उनमें ही काउंट बढ़ता है। उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि जमीन में बीज है, हम पानी देते हैं तो कुछ ना कुछ बीजांकुर आएंगे। यदि बीज ही नहीं तो कितना भी पानी दे दो कुछ फर्क नहीं होने वाला। इसलिए यदि वो सेल्स है तो डेफिनेटली उसको स्टिमुलेशन मिलके आगे की प्रोसेस बनती है और शुक्राणु निर्मित शुरू होती है। जलगांव से एक 2007 की केस मुझे याद है। जलगांव से एक 29 वर्षीय एकदम स्मार्ट लड़का हॉस्पिटल में आया था और हाथ जोड़ के उसने एक ही कहा था कि सर मेरे शादी को 6 साल हुए हैं और मेरा काउंट 0 है और मैंने मेरे हैसियत के अनुसार धुलिया में या जलगांव जाकर कई चिकित्सा की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, तो आयुर्वेद से कुछ हो सकता है क्या? और सबसे पहले उसने ये कह दिया है कि मेरी कैपेसिटी खर्च करने की नहीं है। तो मैंने कहा आयुर्वेद से डेफिनेटली हो सकता है, हम कोशिश करेंगे। तो उसको पहले महीने की दवा ये सब शुक्रवर्धक दवा हॉस्पिटल से दे दी, चंद्रप्रभावटी, पुष्पधनवा रस, मनमताप रस और शुक्र मातृकावटी दे दी और बस्तान बस्ती घर पर कैसे लेना है ये उसे समझा दिया। तब तक हमने बस्तान घृत बना लिया था, यानी जो हर बार टेस्टिस लाने हैं वो बॉईल करने हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि वेजिटेरियन कोई घर है तो उनमें पॉसिबल नहीं होता है, तो उससे सिद्ध घृत अब मार्केट में भी मिलता है, बस्तान घृत या वाजिकर घृत। तो ये घृत डालना है, 1 कप दूध, फिर 1 कप पानी, 1 चम्मच कवच बीज, तिक्तक का भरत चूर्ण, मंद गैस पर जलाकर सिर्फ दूध बचाना है, कुनकुना होने देना है, फिर छानकर 2 चम्मच बस्तान घृत डाल के बस्ती लेना है। और उसको ये कह दिया कि उत्तर बस्ती की सुविधा शिरडी हॉस्पिटल में नहीं है, तो एक काम करना, नेक्स्ट मंथ तू शिरडी हॉस्पिटल आयुर्वेद डिपार्टमेंट में आ जा, सभी चिकित्सा तुझे वहां से मिलेंगी, सिर्फ उत्तर बस्ती के लिए हम कोपरगांव आया करेंगे, यानी तेरा खर्च सिर्फ उत्तर बस्ती का रहेगा। उसने भी 1 महीने का खर्च अफोर्ड कर लिया और नेक्स्ट महीने वो शिरडी आ गया। इस प्रकार से बस्तान बस्ती चलता रहा। उत्तर बस्ती हर महीने 1 बार, ऐसे 3 महीने उत्तर बस्ती करवाए। नवंबर में आया था, फरवरी में जब रिपोर्ट किया तो उसका स्पर्म काउंट 15 मिलियन आया था। उसने एक ही शब्द में कहा कि ये सब बाबा का चमत्कार है।
और उसके बाद में मुझे याद है कि फरवरी के बाद में अप्रैल एंड तक वो शिरडी में आया, यानी 3 माह उसके बाद में आया, और उसके बाद में उसका आना भी बंद हो गया। शायद किराए के लिए, बस ट्रैवल के लिए उसके पास पैसे नहीं हो गए। और एक दिन अगस्त महीने में उसका फोन आता है और वो कहता है कि सर मेरे मिसेस को 3rd मंथ चल रहा है और तो उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा देनी है क्या। तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा, खुशी भी हुई और थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने कहा 3 महीने के बाद तुझे याद आई, आगे क्या किया। तो उसने कहा सर मैं अप्रैल तक आया, उसके बाद में मुझे आना पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जून के बाद में मिसेस का पीरियड नहीं आया, वो आगे पीछे होते रहता है। लेकिन कल मैंने जब टेस्ट करवाई तो टेस्ट पॉजिटिव आ गई। लेकिन मेरा साहस नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दी थी। तो आप गुस्सा करेंगे इसलिए मैंने आपको नहीं कहा था। तो काफी खुशी हुई, यानी सिर्फ 6 महीने की चिकित्सा से, एक आयुर्वेद चिकित्सा से नैसर्गिक रूप से उसका काउंट बढ़कर वो अब नेचुरल तरीके से पिता बनने वाला था। आगे पूरी एनसी आयुर्वेद से हो गया और एक सुंदर से पुत्री को उसने जन्म दे दिया। इन शॉर्ट, आयुर्वेद चिकित्सा से जीवन में पूरी तरह से निराश हुए उस युवक के जीवन में एक वंश का दिया जलाने का काम आयुर्वेद चिकित्सा से हुआ था। इसी प्रकार से कई केसेस, कई अनुभव ऐसे देखे हैं। बीच में एक श्रीरामपुर का एक एग्रीकल्चर लड़का आया था कि जो कि घर की परिस्थिति काफी अच्छी थी, इसलिए पुणे में, हमेशा पुणे बॉम्बे जाके उसमें ट्रीटमेंट करवाई, आईवीएफ करवाई, लेकिन 3 साइकिल के बाद में भी सक्सेस नहीं मिला। उसका काउंट 0 था, आजोस्पर्मिया था। फिर डॉक्टर ने कहा था कि फीमेल की जो उसकी वाइफ थी उसका एंडोमेट्रियम थिकनेस ठीक से नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, इसलिए कंसीव नहीं हो रहे हैं। तो उसका कजिन मेरे पास प्रैक्टिस के लिए आता था, उसने कहा सर एक बार आप ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने कहा बुला लो। 3 महीने मैं हमेशा कहता हूँ 3 महीने से आगे मैं ज्यादा चिकित्सा किसी को नहीं देता हूँ। उसको 3 महीने देने के बाद मैंने उसको कहा कि शायद स्पर्मेटोजेनिक सेल्स नहीं है, इसलिए काउंट नहीं बढ़ रहा है, तो आगे मैं चिकित्सा नहीं दूंगा, आगे तुम एडॉप्शन या आगे के बारे में सोचो। फिर उसने एक ही कहा कि सर 3 महीने की चिकित्सा से मुझे फिजिकली काफी अच्छा लगा है, काफी एनर्जेटिक लगता है, तो क्यों ना हम और 2 महीने चिकित्सा लेकर देखें। तो मैंने कहा ठीक है तेरी इच्छा है तो लेते हैं। फिर चिकित्सा शुरू की, लेकिन उस समय ज्यादा टेंशन मुझे उसके वाइफ का था, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इतनी डिप्रेस थी और वो बार बार वही प्रश्न पूछे जाती थी कि सर कुछ होगा ना, सर कुछ होगा ना। तो मैंने कहा ऊपर वाला सब ठीक करता है, तुम टेंशन मत लो, आगे कुछ ना कुछ होगा। और सही में उसको चिंता होती है। बराबर 2 महीने के बाद में, यानी 5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में उसका काउंट 2 मिलियन आया था। तो मैंने उसको कहा था कि एक काम करो, अभी आईयूआई या एटलीस्ट आईवीएफ तुम कर सकते हो, क्योंकि उसमें अब तुम्हारे स्पर्म मिल जाएंगे। तो उसने कहा सर अभी मुझे कहीं जाना नहीं, जो भी करना है आपके पास करना है। और फिर हमने मिसेस को भी गर्भस्थापक चिकित्सा दे दी, फलग्रुत का उत्तर बस्ती दे दिया और उसकी चिकित्सा चालू थी। आईयूआई हमने शुरू कर दिया। फलग्रुत के उत्तर बस्ती से एंडोमेट्रियम, हेल्दी एंडोमेट्रियम, ये डेफिनेटली होता है। ये मेरे साथ कई लाखों वैद्यों ने, भारत के वैद्यों ने अनुभव किया होगा। इस प्रकार से 5वें आईयूआई में, जबकि मैं 3-4 से ज्यादा आगे चलता नहीं, लेकिन वो काफी पॉजिटिव था, उसकी श्रद्धा थी, तो 5वें आईयूआई में उसकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आ गई और आगे पूरी एएनसी आयुर्वेद से होकर एक सुंदर से पुत्री को उसने भी जन्म दे दिया। यानी ऐसे कई हजारों ब्लेसिंग्स जो आयुर्वेद चिकित्सा के कारण ऐसे मुझे मिले, कई वैद्यों को मिले हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में अजोस्पर्मिया हो, ऑलिगोस्पर्मिया हो, कई मैंने ऐसे पेशेंट, अभी स्क्रीन शेयर में नहीं हो रहा है तो मैंने एविडेंस दिखाए होते, कई ऐसे कई पेशेंट है कि बिफोर में काउंट 0 था, 3 महीने के बाद में आप कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको होस्ट है ना, कर सकते हैं ना अगर करना हो तो। डिलीट दिखा रहा है यहाँ पे। आ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे कई पेशेंट मैंने देखे कि काउंट 3 महीने के बाद में बढ़ा है। किसी का, जिनका सर ऑलिगोस्पर्मिया है, ये 2 या मैंने 3 आपको महीने कर में दिया है सर, काउंट एक बार 6 से ट्राई करिए डायरेक्ट ना 80 मिलियन तक होते हुए मैंने देखा है। सर। टेरेट शेयर स्क्रीन करिए ना प्लीज, मैंने आपको कर दिया है, आप एक बार ट्राई करिए शेयर स्क्रीन। आप है सर, ऑलरेडी को होस्ट है। मैंने कर दिया है सर, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए तो हो जाएगा। थोड़ा दुनिया को पता चले ना रिपोर्ट्स की, मतलब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में क्या रिजल्ट आया। ये ग्रीन बटन है ना सर, ग्रीन बटन शेयर स्क्रीन चैट के साइड में। हाँ आ गया।
सर का एक बात अच्छा है कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सर, हर रिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नवीन जोशी सर भी आ गए हैं। सर आप मुंबई में प्रणाम आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं पंडित जी? बहुत बढ़िया आपके आप सबसे मैं जब से ज्यादा स्वागत वैद्य रामदास अवार्ड जी का करता हूं, जो हमारे साथ शिरडी से जुड़े हुए हैं। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपके महाराष्ट्र में हूं इस समय, और हमारे साथ समय में की कृपा से यहाँ पे अभी ये पेशेंट जलगांव का जो पेशेंट था उसका काउंट यहाँ पे आप देख सकते हो। सूरदास सर भी हैं, काउंट 0 है। थोड़ा सा उनका भी, उनके द्वारा भी आशीर्वाद मिल जाए। हम लोग इसलिए इस वक्त कहीं जा रहे हैं कि हमारे साथ वैद्य लोग हैं सर। ये वैद्यों के हमारे साथ इस्कॉन के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जय श्री सूरदास कृष्ण, जय श्री जी। कृष्ण। तो जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं हम सब बनाए रखे सेमिनार में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो अपनी। ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू थैंक यू। का ये सेमिनार है प्रभु जी? ये चल रहा है सर, ये तो चल रहा है। Okay. How many doctors are on the line? Approximately 51 doctors. Oh, all the blessings to all the doctors, and thank you very Live much. भी है सर, 55 live are there, 55 live भी है। Many of the persons are watching live. Watching live. Yes. Okay, all the blessings. तो आप सबको आशीर्वाद दिया है, और मैं वैद्य रामदास अवार्ड जी के जो काम आपने किया है सर, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो हमने आपको सर लाइफ टाइम एक अचीवमेंट अवार्ड जो है हम आयुर्वेदा डे पे देंगे आपको सर। और हमारी तरफ से आपको आज हम अनाउंस करते हैं इस समय जी। थैंक यू ये ब्लेसिंग। Congratulations sir, congratulations। बहुत बहुत बधाई। आयुर्वेदा डे पे आपको ये जोशी सर, ये स्वामी जी को दिखाइए ना, ये डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं कि मतलब पहले बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। आयुर्वेद ऐसे ही नहीं, डॉक्यूमेंट से दिखा रहे हैं ओरिजिनल कि ऐसा रिजल्ट आता है। डॉक्यूमेंट किया हुआ है Okay. कैसे भी ये पेशेंट जलगांव से था। पर डॉक्यूमेंटेशन इसको थोड़ा वो करिए, जूम करिए ना सर। सर जूम करिए आवाज तक जूम करा ना। नहीं तो पुढे जात ते। एक्चुअली हम कार में हैं तो आगे थोड़ा सा चले जाते नेटवर्क का इशू है जी। ठीक है जी सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। अभी ये जलगांव का पेशेंट जो मैंने कहा का काउंट जब आया नवंबर में 0 था, फिर फरवरी में 15 मिलियन है, और बाद में उसकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आई हुई है। ये एक पेशेंट मिस्टर खान करके है, यहाँ पे काउंट 0 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे काउंट शायद 36 मिलियन हुआ है, और यहाँ पे 56 मिलियन हुआ है। एक काले पेशेंट है, ये बॉम्बे से बिलोंग करता था, काउंट 0 है, और 3 मंथ के बाद में 7.5 मिलियन काउंट इसका हुआ है। एक पेशेंट के रिपोर्ट से बिफोर और पोस्ट का। एक पेशेंट के एक है, भोसले पेशेंट है एक। इसमें कई बार ऐसे होता है कि मॉडर्न साइंस में इसके लिए कुछ नहीं है। एक इसमें एक पगारे करके पेशेंट का रिपोर्ट आएगा जिसका काउंट 0 था, और 0 काउंट के बाद में जब वो पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास चला गया तो रिपोर्ट लेके उसकी माँ, उसके वो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा था कि आयुर्वेद वाले रिपोर्ट मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे कभी काउंट बढ़ता नहीं है। तो उसने मुझे फोन करने का डेयरिंग नहीं किया, उसने उस पैथोलॉजिस्ट को फोन करके कहा था कि तुम ऐसे रिपोर्ट मैनिपुलेट करते हैं, कभी आजियोस्पर्मिया का काउंट बढ़ता है क्या? तो उस पैथोलॉजिस्ट ने एक कहा था कि सर हम ऐसे कभी नहीं करते, लगा तो आप रिपीट सामने बैठ के आ जाओ, रिपीट का सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। और 3 महीने के बाद में उस पेशेंट की यूपीटी टेस्ट जब पॉजिटिव आई तो वो उसकी माँ हाथ में एक लकड़ी लेके उसके उस गायनेकोलॉजिस्ट पास चले गया, और फिर उसने कहा कि सर अब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आया, फिर ये भी मैनिपुलेट किया है क्या? तो फिर उसने वहां एक्सेप्ट किया कि आयुर्वेद से ऐसा होता ही है, मैं पहली बार देखता हूँ। और उसने उससे बचने के लिए उसके सामने मुझे फोन किया था और कहा था कि आयुर्वेद 3 आयुर्वेदा
और मैं आगे से आयुर्वेद के पास पेशेंट रेफर किया करूंगा। तो ऐसे कई मिराकल्स आयुर्वेद में होते हैं। अभी एक केस टेराटोजूसवर्मिया की काउंट 85 मिलियन है, लेकिन 100% डेड स्पर्म है। तो इसमें भी सिर्फ 2 महीने शिरडी में चिकित्सा करवाई थी, और जब फरवरी के बाद चिकित्सा लेकर गायब हो गया और अक्टूबर में जब आया तो फिर से मैंने काउंट करवाया तो उसका टोटल मोर्टेलिटी अबव 80% हुई थी। यानी सिर्फ 2 महीने की चिकित्सा से भी ये इसमें है, काउंट 0 है और बाद में काउंट 85 और मोर्टेलिटी 0 है, इसमें बाद में मोर्टेलिटी उसकी बढ़ी हुई है। तो ऐसे कई एविडेंस प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलते हैं। अब इन शॉर्ट में जितने भी मैं मेरे प्रैक्टिस में ट्रीटमेंट इस्तेमाल करता हूँ उनमें चूर्ण में शतावरी, अश्वगंधा, कवच बीज, विदारी कंद, सफेद मुसड़ी, गोखरू, कटारा, तालीम खाना, खसखस, जायफल ये रहता है। भस्मा में मकर ध्वज भी रहता है, त्रिवंग भस्म, स्वर्ण आरोप पे जो अफोर्डेबल हो तो ये साल में एक आध पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल सभी को नहीं होता है। गुटी वटी में शुक्रवल्लभ है, स्वर्ण मकर ध्वज है, पुष्प धनवा, मनमतापर रस, शिलाजीत, शुक्रवर्धक योग, वानेरी योग, कवच बीज, पूर्ण चंद्रोदय, वृक्षवटी, चंद्रप्रभा, कामिनी रस, सेमोक्लिन टैबलेट, ड्यूरोज, ऐसे कई कंपनियों के आते हैं। शतवरी कल्प है, वानेरी कल्प है, क्रौंचा पाक है, मकर प्राश है, पलांडु पाक है, मुसली पाक है, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। घृत में बस्तान घृत अब मिलता है, वृक्षकर घृत भी मिलता है, वाजिकर घृत भी मिलता है, शक्तिपत घृत भी मिलता है, शतावरी अश्वगंधा घृत भी मिलता है, ये भी अभ्यंतर तुम ले सकते हो। पंचकर्म में उसमें वमन, विरेचन, रक्तमुक्षन, शिरोधारा, इनका रोल अच्छा है। और शुक्राणु वृद्धि के लिए बस्तान घृत बस्ती, उत्तर बस्ती, शतावरी अश्वगंधा, सहचर और चंदन बाला, ये कॉम्बिनेशन में 30 ml का उत्तर बस्ती हम करवाते हैं। जैसे अवस्था है, पेशेंट की प्रकृति है, उसके अनुसार कर्म किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन शॉर्ट में आज मैंने ये बता दिया, क्योंकि आगे कुलकर्णी सर है, अशोकन सर है, उनसे काफी कुछ हमें सुनने को मिलेगा। हम आयुर्वेद को डेफिनेटली काफी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा ख्वाब हमेशा देखा करेंगे, ड्रीम देखा करेंगे, और ये वो ड्रीम होगी जो कि हमारे पैगंबरवासी माजी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम साहब ने कहा है कि ड्रीम इज दैट which we have see in sleep, but dream is that which doesn't allow to see in sleep। तो इस प्रकार से हम स्लीप के बारे में कह सकते हैं कि हम नींद में ख्वाब नहीं देखेंगे, जो हमारी नींद उड़ा दे ऐसा ख्वाब हम देखेंगे। तो इस प्रकार से फिर से एक बार मैं नवीन जी को और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम को मन से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन शॉर्ट पीरियड में मुझे बताया और मैंने मेरे विचार आपके सामने रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद। Thank you, sir. Thank you very much, and congratulations सर once मेरे को again एक for the क्वेश्चन पूछना है। Lifetime Achievement Award by Ayurveda Foundation, and we all invite you on the occasion of National Ayurveda Day, 2nd November, for this award function, sir. ओके, थैंक यू। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि सर बस्तान घृत बस्ती आपके इधर कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बताइए। नहीं, बस्तान घृत अभी मार्केट में रेडी मिलता है। जो पुराने हमारे शंकर सिंह वैद्य थे, गिरासे वैद्य थे, उनके वागभट फार्मा से बस्तान घृत बना के मिलता है। तो हम क्रौंच बीज, कवच बीज और तिक्तक भरड़, उनमें गिलोय होता है, काढ़े चिरायत होता है, ये कॉम्बिनेशन में रखते हैं। 1 चम्मच कवच बीज भरड़ और आधा चम्मच तिक्तक द्रव्य ये इकट्ठा करते हैं। 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच ये भरड़ द्रव्य मंद गैस पर जला के सिर्फ दूध बचाना है। कुनकुना होने के बाद में छानना है, यानी वो मलाई जो होती है उससे सिरिंज ब्लॉक ना हो। फिर 2 चम्मच बस्तान घृत या शतावरी घृत डालकर फिर बस्ती लेना है। थैंक यू सर। सर कितने दिन के लिए देंगे हम, मतलब कोर्स कैसे होगा इसका, थोड़ा और नहीं, ये बताएंगे? तो 4-5 महीने तक चलता है, जब तक काउंट हमारे सेटिस्फेक्शन तक नहीं बढ़ता है तब तक देते हैं। लेकिन सिर्फ अजोस्पर्मिया इस्तेमाल करते हैं, ओलिगोस्पर्मिया में ये जरूरत नहीं होती है, शमन चिकित्सा से भी काम चल जाता है। और सर ये बस्ती आप उत्तर बस्ती देते हैं कि नॉर्मल बस्ती देते हैं? नहीं, ये बाय एनस रहता है, ये बस्ती होता है, बस्तान बस्ती। और उत्तर बस्ती चंदन बला, सहचर, शतावरी अश्वगंधा तेल का 30 ml इंट्रा ब्लैडर में होता है। वो 1 in a week या 10 दिन में एक बार। जी सर और एक सवाल पूछा है डॉक्टर दीप्ति ने। डॉक्टर दीप्ति आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ओबेस पेशेंट विद ओलिगोस्पर्मिया, हाउ लॉन्ग? दीप्ति जी को पूछने दीजिए ना कृपया। हाँ दीप्ति पूछिए। हाँ, प्रणाम सर।
अगर ओबेस पेशेंट है और इनफर्टिलिटी के लिए उनको ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया है, उनमें जो आपने बताई ये सारे द्रव्य यूज कर रहे हैं, बट अगर कंटिन्यू यूज से जैसे क्रॉन्च है, क्रॉन्च का बाकी फॉर्म में भी यूज है, तिक्तक्षीर में भी यूज है, ओरली भी है, क्रॉन्च है और विदारी, शतावरी, अश्वगंधा, ऐसी चीजें से अगर वजन बढ़ रहा है तो क्या फिर भी इनको कंटिन्यू करे या फिर कम मैम करना चाहिए या कुछ तो और ऐड करना चाहिए? हाँ, एकदम बराबर क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली ऐसे पेशेंट काफी देखने को मिलते हैं और ज्यादातर पेशेंट आईटी क्षेत्र के होते हैं इनमें, क्योंकि सिटिंग जॉब होता है और उनमें डायबिटिक हिस्ट्री यदि है उनके फैमिली में तो ये प्रॉब्लम आता ही आता है। तो सबसे पहले उनको वेट रिडक्शन कम करने के लिए बोलना है, पहले वजन कम करना जरूरी होता है और वजन कम करने के साथ साथ ये बल्ले चिकित्सा होती है। तो यदि ऑलिगोस्पर्मिया है तो बस्तान बस्ती या कवच बीज के बस्ती देने की जरूरत नहीं, बाकी शमन चिकित्सा से काम चल जाता है। लेकिन साथ में आहार का डाइट यदि करते हैं और कुछ वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली वजन भी बढ़ता नहीं और काउंट बढ़ जाता है। वर्कआउट वो कर रहे हैं सर, उनको धातु पौष्टिक अगर दिया ना थोड़ा सा भी तो उनका वजन बढ़ता है, तो वो होल्ड पे रखा है। और एक्चुअली वो वेट लॉस के लिए कर रहे थे, गलत तरीके का डाइट कर रहे थे, यही उनका हेतु था कि उनको काउंट्स इतना कम हो गए। दिन भर नहीं खाना, रात में ज्यादा खाना, डाइटिशियन से जो सलाह ली बहुत गलत तरीके से चल रहा था, इससे उनको ग्रहणी निर्माण हुआ और वेट गेन ज्यादा हुआ फिर, तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो अभी अच्छा है, बट बस 2 महीने हुए हैं, फिर यही चलने देना चाहिए। वजन 1 किलो ही बढ़ा है 2-3 महीने में, ज्यादा नहीं बढ़ा है। नहीं, इतना तो एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली वो क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि पेशेंट हमेशा बोलता है हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं। हम घूमने जाते हैं, कहाँ तक घूमने जाते हैं, आधा घंटा घूमते हैं, लेकिन वो आधा घंटे में 10 मिनट जाने के बाद यदि वहां पर 20 मिनट बैठते होगे तो आधा घंटा घूमना नहीं होता है। ये स्पेशली आप क्लियर करो कितना एक्सरसाइज करते तो डेफिनेटली कम होता है, इतना नहीं बढ़ेगा वजन। ओके सर, श्योरली मैं क्लियर कर लूंगी। या थैंक यू सर, मेरा भी एक सवाल है सर, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो जैसे कि जो भी हेड डिफॉर्मिटी वगैरह होती है स्पर्म की, तो इस डिफॉर्मिटी को हम लोग कैसे ये करेंगे? काउंट को तो ठीक है, हम बाकी सारे कल्प हम दे सकते हैं, बट जो डिफॉर्मिटीज है या कल्प का किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करें, क्लासिफाई कैसे करें कि कहाँ पे कौन सा कल्प ज्यादा संयुक्तिक रहेगा? मैडम, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ये मेरे मन में कई दिनों से है, लेकिन ये काम इंस्टीट्यूट लेवल पे हो सकता है, क्योंकि आने वाले पेशेंट को हमें रिजल्ट देना है। यदि हम इसी ये ट्राई करके देखेंगे और इससे फर्क होता है नहीं होता है करेंगे तो 2-3 महीने में यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो पेशेंट हमें छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए ये काम इंस्टीट्यूट लेवल पे होना चाहिए। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में मैंने यही कहा था कि इससे ये होता है, हमने ये कहा कि इससे काउंट बढ़ता है, इससे मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी नॉर्मल में हो जाती है, लेकिन मोड ऑफ एक्शन कैसे हुआ, कौन से दवा ने कहाँ पर कैसे काम किया, ये इसका रिसर्च होना जरूरी है। यदि ये इस प्रकार से रिसर्च वर्क यदि हम वर्ल्ड के सामने रखते, दुनिया के सामने रखते तो उसको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगा। आयुर्वेद से ये होता है, ये हमने तो बता दिया है, लेकिन आगे के जनरेशन का ये काम है कि कौन सी दवा एक्चुअली कहाँ पे काम करती है, उसका स्टैटिस्टिकली डाटा क्या है, तो इसके लिए रिसर्च वर्क जरूरी है। आपका जो सवाल है ये मेरे मन में भी काफी दिनों से है। अभी क्योंकि सर स्पर्म मोटिलिटी के लिए कैसे देंगे, या फिर जो स्पर्म काउंट में जो वैरायटी है, सर ने कहा ना कि वो रिसर्च का विषय है। सर रिजल्ट दे रहे हैं और आपको पता नहीं सर के पास ना 300 विद्यार्थी लोगों का वेटिंग आ रहा है। वो तो सब पता है मुझे, बट सर इतना अच्छा काम करेंगे, आगे हम लोग करेंगे ना विद्यार्थी लोग। और मुझे तो लगता है कि सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये विषय में, पूरा इंडिया के आईवीएफ सेंटर बंद करवा देंगे सर। नहीं, इसके लिए सभी साथ में चाहिए। यस सर। डॉक्टर राजकुमार प्लीज। ये मेरे क्लासमेट हैं डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी, ये प्रोफेसर हैं द्रव्य गुण के। राजकुमार जी पूछिए प्रश्न। सर रामदास सर प्रणाम। आशीष बोलिए। सर अभी जो आपने लास्ट में कहा कि रिसर्च होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे सर आपने जो ऊट कटरा कहा, तो हमारे 2 PhD वर्क अभी जस्ट उनका IAC अप्रूवल आया है। तो हम लोग ऊट कटारा का बीज और मूल इसका टेस्टिकुलर रीजनरेटिव मॉडल इन विस्तार रैट्स में अभी स्टडी कर रहे हैं। Very good, और एक स्टडी सर हमारा एरंड बीज, एरंड तेल और एरंड मूल, एरंड मूल चरक ने वृक्षवातर कहा और एरंड तेल को भाव प्रकाश और सुश्रुत जी ने वृक्ष कहा। बराबर। तो सर मैं ये हमारा हमने वृक्ष पे 2-3 हमारे वर्क चल रहे हैं सर। और मुझे ये पूछना है सर कि ऊट कटारा जो है वो राजनिकुंठ में बीज उसका परम वृक्षम कहा, जबकि छत्तीसगढ़ में मूल उसका यूज करते हैं। तो हम लोग कंपेरेटिव उसका स्टडी कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है सर ऊट कटारा के बारे में मेल इनफर्टिलिटी में?
नहीं नहीं सर, ऊट कटारा अब तो हम तो बीज का चूर्ण मंगाते हैं, अभी आने देने वाले देते हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी कितनी है उसके लिए भी हम डाउटफुल है। तो अभी ये एक काम हुआ आपका सिर्फ, ऐसे हर जगह पे यदि काम होते हैं और उसमें ऑथेंटिसिटी रहती है तो आगे होगा। नहीं तो अभी रामदेव बाबा ने कई रिसर्च किए थे लेकिन ICMR ने रिजेक्ट कर दिए। तो हमें शासन पुरस्कृत इन्वेंशन चाहिए, शासन पुरस्कृत रिसर्च चाहिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के सामने रखना चाहिए। तो सभी अभी एक वनस्पति पे हो रहा है, ऐसे तो हजारों वनस्पति आयुर्वेद में बताए हुए, तो इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए और उसके एविडेंस यदि सामने आते हैं तो हम आगे चल के कुछ तो भी बोल सकते हैं फिर। बिल्कुल सर। और ऊट कटारा सर हमारे यहाँ काफी ज्यादा होती है सेंटर, ये वर्धा के आसपास। मैंने ये समर सीजन में काफी ज्यादा वो कोविड के लिए दिया हमने। बराबर है। मैंने चिखलदरा का जो अभयारण्य है उसी में वैद्यगिरी थे हमारे साथ में, तब मुझे उसके बारे में पता चला था, मयूर शिखा और ऊट कटारा, तब से हम इस्तेमाल करने लगे उसके लिए। बहुत ज्यादा है सर। और अविनाश जोशी सर ने यवतमाल के इसका उपयोग कोविड में काफी पेशेंट में किया सर। और हमने आयुष तक इसका ये लिया बैकअप, लेकिन आयुष ने यही कहा कि पहले फ्री क्लिनिकल में करो बाद में ये करो। लेकिन सर मैं खुद 2000 बच्चों को मेरे गांव में शेगांव के पास कोविड के लिए इसके ड्रॉप्स दे के आया। अपना तो दुर्दैवी यही है ना कि हमें एविडेंस मांगते हैं और बाकी के लिए एविडेंस नहीं होते हैं। बिल्कुल और सर। आयुर्वेद तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा शास्त्र ऐसे, ऊट कटारा हम इसके लिए दे रहे हैं, लेकिन दूसरी 4 डिसीज के लिए वो किस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, किस प्रकार से फायदा कर रहा है, ऐसे हर एक वनस्पति का है। आयुर्वेद की यही तो स्पेशलिटी, एक डिसीज ठीक करने जाओ 4 अपने आप ठीक होते हैं। अन्य पैथी जैसे एक ठीक करने जाओ 4 गिफ्ट में नहीं मिलते हमें कभी। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। डॉक्टर नागेंद्र सर, आप कुछ कहेंगे एज अ चेयरमैन इसके बारे में? आपके कुछ ओपिनियन हो, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज यू कैन सर। सर you are not audible sir, your voice is low. No sound sir, no voice. Please remove your headphone. हाँ, हेडफोन आपने सब कुछ निकाल कर बोलिए। No? Yes, sir. I am audible now? Yes sir. Yes sir, yes sir. Okay. First of all, I am congratulate Dr. Ramdas sir. Thank you. Being very, sir has explained much of clinical based, evidence based treatments, especially. That too, challenging cases. Most of the cases are oligospermia. It is very difficult to treat. If you heard the word azoospermia, azoospermia. If you heard the word azoospermia, no, in modern science also, nobody will tell to go for IVF, first of all. And also, even the sperm count is less than 1 million. It is called cryptospermia. The condition is called cryptospermia. In that also, there is no chance of improving. It is very difficult to improve in cryptospermia also. Below the 1 million. It is a simple 1 or 2 or 5 limited number of countable sperms are seen in cryptospermia. Where in case of oligospermia, severe oligospermia, less than 5 million, there is an involvement of chromosomal defects or genetic defects. It is very difficult to improve, especially in severe oligospermia. So in that is the scenario. The sir has improved much of the cases. I had seen sir has shared more than 5 to 6 cases and 1 female infertility case. And meanwhile, I try to answer for one question was asked by Deepthi madam regarding obesity. First of all, I will answer for that question, and then I will go for next. The thing is, obesity patient in Acharya Charaka has mentioned, Majja Shukra Samuttanam Swadutiktakam Annam Vebaya Vyayamam Shuddhihi Kalecha Matrayaha. It is very clearly he has mentioned. He identified 2 rasas. One is Madhur Rasa and Tikta Rasa. Where Madhur Rasa is needed, where Tikta Rasa is needed, we have to select on the basis of the condition of the patient. In the case of obesity patient and clinical presentation
with obesity with diagnosis as oligoasthenospermia. Mainly the kapha and vata is involved in the condition, and kapha vata hara chikitsa is mainly needful. In that is the case, we have to start with the tikta rasa pradhana dravyas. First, we have to improve the tikshna rasa, tikshna guna, lagu guna, and sukshma guna. Like that, we have to select the drugs, and then kapha vata hara chikitsa. Any of the drug you can choice, and Shoto Shuddhi and Deepana Chikitsa, Deepana Pachana Dravyas has to be advised. Then the patient has developed Grahani. The Grahani in the chapter Charaka, yes, the Shukra, the details of Shukra is mentioned, Shukra Utpati is mentioned in the chapter, Grahani chapter. You try to understand, Grahani is the Nidhanartakara Roga. If you treat Grahani, definitely itself, there is an improvement, an enhancement of the sperm count and motility. I have some, before going to the treatment aspects, one Vaidya has to analyze Sadhya Sadhita, prognosis of the disease. Most of the cases who come to azoospermia, there are a number of azoospermia, the obstructive azoospermia, non-obstructive azoospermia, and try to understand what is the condition, which pathology is involved. The sir has mentioned plenty of a number of yogas, but I try to know, because if germ cell is absence, in absence of spermatogonia or spermatogenic failure, in that type, or spermatogenic arrest or maturity arrest, what you call. So in that type of the cases, it is very difficult to treat, because my experience I am sharing, sir may have, because my sir has treated so many cases. Because if you share that much of experience with respect to the correcting the morphology, that too teratospermia. The teratospermia is the morphology impairment is called teratospermia. If correct the morphology, definitely, because morphology defects is very important. Most of the count is same and motility is normal. In morphology defect is there. It is called DNA. DNA defects, DNA damage. DNA damage is there, especially if is more than 25. It is called a DNA damage. It is called DFI. We have to go for DFI, DNA fragmentation index. On the basis of that, we have to select the drugs that to on the antioxidant drugs. But DNA fragmentation test is important. The moreover, severe oligospermia, azoospermia condition, the most of the cases the genetic involvement is there. But how far the treatment is worked, it is very difficult to explain. But we will get the results. So I am once again I am congratulate the Ramdas sir, because it is a very tough task. But I would try to know the mutation which the type azoospermia sir has treated. I explain the how the step by step sir has changed the drugs or continue the same drugs for up to the 3 months. And that all been, if you explain the explanation is needed. If it is so, it is a wonderful presentation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So moving with our next session, I would like to invite Dr. Kulkarni sir. Dr. Arvind sir, please introduce Dr. Kulkarni sir. कुलकर्णी सर के बारे में मैं तो पहले अपने लोकल भाषा में बताऊंगा कि मुझे कुलकर्णी सर के बारे में इतना मालूम है कि जब न पूना में कोलटकर सर जी ने बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को सिखाया, तो उसमें से केवल 6 या 7 लोग ही प्रैक्टिशनर टॉप में थे। उसमें से एक हमारे कुलकर्णी सर भी थे, जो अप्पा बलवन चौक पुणे है, वहां पे इनका क्लिनिक था उस जमाने में, और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। इतना मतलब इनके पास बात करेंगे तो इतने स्वीट है ना कि क्या बताएंगे। एक डॉक्टर का गुण जो होता है कि उनके पास जाने से व्याधि दूर हो जाता है बात करने से, ऐसे हमारे गुरुजी हैं प्रमोद कुलकर्णी सर। तो इनका तो 36 साल का अनुभव है। इन्होंने एमडी किया है निदान में, काय चिकित्सा में, और तिलक आयुर्वेद कॉलेज रास्तापेट में सर प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है। तो सर का एक्सपीरियंस हम सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो सर को मैं आह्वान करता हूँ कि आप आइए और बताइए अपना अनुभव। सर बहुत अच्छे हैं, अब आपको अभी समझ आ जाएगा कि सर कितना अच्छे से प्यार से बताएंगे सब चीज। जी सर। डेफिनेटली यस, वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार सब लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतने सब लोगों ने इतना सब काम किया है, काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। ये तो
मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मुझे कुछ बात करने का मौका मिल रहा है, और आगे भी शायद हो सकता है तो सामने बैठ के भी बहुत अच्छी बातें हो सकती है। ये तो ऑनलाइन यानी ये कैसा हो गया, अभी तो मेरा सब्जेक्ट जो है तो वाजीकरण है, और उसमें एडिशन मैंने बीजोपघात किया है। नहीं, यानी कि मैंने बीजोपघात नहीं किया है, वो प्रकार बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, प्रकार। इसमें वाजीकरण वो क्या है, आयुर्वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें कुछ बातें बताई गई है, कुछ बातें बताई नहीं गई है, इसमें शोध नहीं लगते हैं, कुछ शोध नहीं लगाते नहीं हैं, सिर्फ ग्रंथ पढ़ के जो भी उसमें आया है उसकी भी बातें की जाती है। मगर ये बात तो सच इतनी नहीं है, क्योंकि जब तक you can go to as early as possible, nearest possible to the Granth, it becomes very difficult to create an idea of Ayurveda. This is the difficulty not of Ayurveda but yours. जो ग्रंथ के पास जाने की कोशिश नहीं करते उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो आयुर्वेद की नजदीक नहीं जाते। इसकी वजह से मैं थोड़ा अलग तरीके की बात कर रहा था और कर रहा हूँ। तो ये जो बीजोपवाजीकरण जो है ये थोड़ा अलग तरीके का, ये दुनिया में काफी लोगों के प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि इसके कारण भी बहुत कारण उसमें है। तो में आजकल का जो तरीका है रहने का, खाने का और बाकी जो कुछ बातें हैं वो सब इसमें आ जाएगी, और ये बताने में और उसमें ये सब की बातों के बारे में आयुर्वेद में है। चरक ने बेसिकली दिस टॉपिक इज टेकन बाय चरक, क्योंकि काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान, ये जो वृषान है ये सबसे महत्व का शब्द है। इसमें सब में ये वजनम वाजहा ये बहुत महत्व का शब्द है, क्योंकि इससे शुक्र की निर्मिति होती है। वैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और शुक्र की निर्मिति आखिर में होती है, और इसकी वजह से वो जो भी आप खाना खाते हो, जो भी इस्तेमाल करते हो, उससे ही उसका शुक्र की निर्मिति, हर धातुओं की निर्मिति होती है, मगर शुक्र की निर्मिति आखिरी में बहुत कम प्रमाण में होती है। इसीलिए इसमें अभी जो प्रकार बाकी के डॉक्टर लोग भी कह रहे थे कि आजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, वगैरह वगैरह, वो सब अलग अलग तरीके हैं। वो आजकल के ये जमाने में अलग अलग तरीके का ढूंढने का भी आया हुआ है, अलग अलग तरीके के हथियार भी इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए, और उसमें ये सब नाम जो है उसमें से आए हुए हैं। आयुर्वेद में जो प्रकार आए हुए हैं वो थोड़ा अलग तरीके के उन्होंने बताए हैं, है तो यही ही, मगर उसके बारे में सोचना और ढूंढना, ये बातें खुद वैद्य को करना बहुत जरूरी होती है। इसकी वजह से अष्टांग आयुर्वेद में जो 8वां वृक्ष शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ही वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण का कारण ये है कि वाज में वाज यानी घोड़ा, और दूसरा भी अर्थ है, उसका अर्थ है बैल। एक तो शुक्र की निर्मिति में बहुत ज्यादा है और शुक्र क्षय बहुत जोर से कर सकता है, और बैल जो है उसको समय थोड़ा ज्यादा लेता है। ये थोड़ा नामों के बारे में, वो दोनों शब्द क्यों आते हैं और इसमें ये शब्द क्यों आए हुए हैं, ये थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो ये नारीषु सामर्थ्यम वाजीवत लभते नरहा, ये और एक बात है। इसमें एक बात कही गई है हमारे देश में, यानी कि कम से कम भारत में तो यही बात बताई जाती है कि स्त्री को खुश करना, इसके लिए शुक्र की बहुत अच्छी
निर्मित होना भी जरूरी है, और उसके लिए नारी को खुश करने के लिए आपके पास वाजीकरण होना चाहिए, यानी कि आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए। इसीलिए वो वाजीकरणत्व जो है, वो जिनको प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए ये वाजीकरण चिकित्सा की जाती है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको कुछ जरूरी नहीं होता है। शुक्र वृद्धि, शुक्र श्रुति और शुक्र वृद्धि श्रुति कर्तव्य, ऐसे 3 टाइप इसमें आ जाते हैं, और एक ही यानी कि एक शब्द में 3 टाइप ग्रंथ ने बताए हैं। ये इसने बताए हैं। चरक में चक्रपाणि दत्त ने बताए हैं, यानी कि वो जो ग्रंथ पढ़ते थे उसके बारे में खुद भी कुछ अलग सोचते भी थे। ये खुद को ऐसी आदत लेनी चाहिए कि यदि चरक पढ़ा या सुश्रुत पढ़ा या वाग्भट पढ़ा या और भी कुछ ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें से आया हुआ है ये हम तो मान लेगा, मगर ये पढ़ते वक्त आपको कुछ अलग ध्यान में आ गया है तो वो भी आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या है, वाग्भट जैसा कहता है कि इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम न मीमांस्य कथंजन। वो थोड़ा अलग तरीके की बात करता है कि मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम, जैसा भी बताया है वैसे ही बताओ, मगर उसका कारण भी बताया है उन्होंने। चरक ने आपको दूसरा अध्याय सूत्र स्थान में चौथा अध्याय पढ़ा तो उसमें दिया हुआ है कि जो बहुत बुद्धिमान होता है उनको खुद में बदल करने की जरूरत है, जो मध्यम बुद्धिमान होता है उनके बदल करने की जरूरत नहीं है, और अबुद्धिमान है जैसा भी दिया है वैसा ही उसका इस्तेमाल करो, ज्यादा उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे उन्होंने बताया है। मैं आपको नहीं ये सब बातें बता रहा हूँ, ओके, तो खुद पे मत लेना। तो इसके बाद में स्वस्थ से ऊर्जकरम वृषम, ये क्या है, ये रसायनम भी कहा गया है। इसमें ये देखो वाजीकरण पहले क्या है, चरक ने पहले रसायन अध्याय दिया है और उसके बाद वाजीकरण अध्याय दिया है, मगर जब रसायन अध्याय का वो बात कर रहा था तो उसमें भी उन्होंने वृषम ऐसा शब्द डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि रसायन चिकित्सा जो है इसका उपयोग वाजीकरण में भी होता है। तो रसायन अध्याय की जो चिकित्सा है उसका इस्तेमाल आप वाजीकर द्रव्यों के जैसे कर सकते हो, जैसे आप आवाड सर ने अभी काफी द्रव्यों के नाम लिए या कुछ दवाइयों के भी नाम लिए, तो वो दोनों जगह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है और बाकी भी बहुत सारी द्रव्य है, कभी कोचू है वगैरह, वो सब रसायन चूर्ण में भी आएंगी और आगे वाजीकरण में भी आएंगी। उसके प्रमाण और किस वक्त वो देना है, जैसे आवाड सर ने और दूसरे सर भी बता रहे थे कि सुबह या रात को या सुबह रात को ऐसा भी देना है, मगर वात का यदि प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सुबह का और रात का वात का काल अलग होता है और अपान काल जो होता है वो अलग होता है। तो खाने के पहले देना, खाने के बाद में देना, या सुबह देना या रात को देना, इसके बारे में आप इस द्रव्यों के, ये द्रव्य तो सही है और अच्छे भी है और इस्तेमाल सब वैद्य ये करते भी है, मगर फिर भी उसका उपयोग किसके लिए, किसकी वजह से और किस कारण की वजह से कर रहे हो और उसका अनुमान क्या है, इसके बारे में हर वैद्य ने सोचना जरूरी है। हम पूरे भारत में ये बात बता रहे हैं, इसकी वजह से हर जगह का तापमान अलग होता है और हर जगह की परिस्थिति वो सब अलग अलग होती है, इसकी वजह से ये मैं बात दोहरा रहा हूँ। इसीलिए आपको ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे आयुर्वेद ने बताई है, मगर ये बातें कोई बताता नहीं है कि जिसके बारे में आपको सोचना कैसे है। सोचने का तरीका यदि नहीं मालूम हुआ तो ये समझो कि दूसरे दिल्ली में से चिकित्सा कर रहा है या कर्नाटक से चिकित्सा कर रहा है या केरला से चिकित्सा कर रहा है या महाराष्ट्र से चिकित्सा कर रहा है, तो हर तरह की बातें जो होती है, वनस्पतियां जो होती है वो अलग अलग होती है और उसका उपयोग जो है वो उपयोग
जिस तरीके से करना है, जिस अनुपान के साथ करना है और जिसके लिए करना है, उसका भी उपयोग आपने करना है। इसीलिए अब आगे की जो बात मैं करने जा रहा हूं, उसमें क्लैव्य का विधान करना ये बहुत जरूरी है। क्लैव्य ये शब्द जो है वो चरक नहीं आया हुआ है, और उसमें वाजीकरण सिद्धांत का जो व्याधि बताए गए हैं उसमें वृक्ष जो है, वृक्ष नहीं, क्लैव्य, इसमें रस और शुक्र व स्रोतस का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रस व स्रोतस से शुरुआत होती है और शुक्र व स्रोतस में उसका अंतरिम परिणाम मिलता है। तो सब धातुओं में मैंने जैसे पहले बता रहा था कि जो हम आहार करते हैं उसका पहले आहार रस से रस बनता है, और उसके आखिर में परिणाम जो होता है वो शुक्र में होता है। और उसके बाद नहीं, शुक्र ओज 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 उसमें भी मैंने बताया था कि ओजक क्षीयेति कोपेक्षु ध्यान शोक श्रमादि भी विभेति दुर्बलो विक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रियः दुष्छायो दुर्मना। ये जो दुष्छायो और दुर्मना, इसमें से दुर्मना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र के बाद ओजों की निर्मित होती है। यदि शुक्र का क्षय हो तो ओज का भी क्षय यानी कि निर्मित कम हो जाएगी और उसको दुष्छायत्व आ जाएगा। तो उसकी वजह से ये आपको जिसको जो शुक्र का इस्तेमाल जिस तरीके से जिसकी वजह से करना है, उसको ठीक तरीके से कर नहीं पाएगा वो व्यक्ति, और उसके लिए थोड़ी अलग चिकित्सा उसको देनी पड़ती है। शायद इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये दुर्मना, इसके लिए शिरोधारा का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। शतावरी और माउसी सिद्ध तेल आपने किया और उसका उपयोग शिरोधारे के लिए किया, ये मैंने भी पेशेंट के लिए करके देखा हुआ है। जो भी मैंने किया है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने किया नहीं है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पाठ और बहुत सारे द्रव्यों का इस्तेमाल अनेक बाद में निर्माण किए हुए ग्रंथ में भी आए हुए हैं, मगर जितना भी हो सकता है जानकारी मैं सब लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर का ये जो बातें बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि वाजीकरण के बाद उसमें जो कुछ प्रकार आए हुए हैं वो आए हैं, उसमें बीजोपघात करके एक प्रकार आया हुआ है, वो जो बहुत महत्वपूर्ण है। बीज उसका उपघात यानी कि बीज की निर्मित ही कम होती है। यही तो प्रॉब्लम होती है कि हमारे आहार विहार और औषध की वजह से आपको अच्छी तरीके से इसका सब इस्तेमाल हो सकता है। यदि अच्छी तरीके का आहार है, अच्छी तरीके का विहार है, व्यायाम वगैरह सब हो रहा है और ठीक अच्छी तरीके की दवाई आपके पास आ गई है, तो आप उसका इस्तेमाल ये बीज के वृद्धि के लिए कर सकते हो। मगर इसमें और भी शुक्र क्षय, शुक्र दुष्टि, ऐसे भी और भी दो तरीके हैं। शुक्र क्षय जिसमें ऑलिगोस्पर्मिया जैसे आप कह रहे थे वैसे वो भी बातें हैं, और शुक्र दुष्टि में भी अलग तरीके का, उसमें शुक्र तो होता है मगर दुष्ट युक्त होता है, तो उससे निर्मित नहीं हो सकती है। उसके लिए उसके कारणवश जो भी दुष्टि हुई है वो हेतु आपको सही तरीके की पाचन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा की बहुत जरूरत होती है। इसमें बहुत महसूस होता है कि पंचकर्म की वजह से बहुत सारी ट्रीटमेंट यू कैन डू फॉर एनीथिंग। दोषा कदाचित कुप्यन्ति जित्ता लंघन पाचने ही जित्ता संशोधन कुर्यात ये तेषां न तेषां पुनरुद्भवः, ऐसा पंचकर्म का कहना है। मगर इसमें एक बात होती है कि कौन सी वजह से, कौन से धातुओं में, कौन से कारण और किस जगह ये पंचकर्म आप किस तरीके के, ऋतुकाल का भी ध्यान आपको देना पड़ता है। वमन देना है तो मार्च और अप्रैल महीना जैसे लगता है, जैसे
बाकी बस्ती तो कई भी किसी भी वक्त दिया जा सकता है, चाहे बुद्ध बस्ती हो या उत्तर बस्ती हो, कुछ कारण की वजह से भी दिए जा सकते हैं, मगर उसका वजन कितना है और वो कितना उम्र उसकी कितनी है, वो भी ये देखकर आपको ये तय करना पड़ता है। ये सब वैद्य लोग तय कर सकते हैं, इसीलिए वैद्य के पास वो रुग्ण ऑनलाइन नहीं, खुद आना चाहिए, उसको खुद ने आपने देखना चाहिए, उसके उदर परीक्षण करना चाहिए, नाड़ी परीक्षण भी करना चाहिए, और बाकी की जो सब हम परीक्षण करते हैं, दुष्यम देशम बलम कालम अलनम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदः सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेशा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैद्य जब देखता है पेशेंट को तो उसका सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेशा दोषौषध निरूपण, यानी कि इतना सब देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो दोष देखने चाहिए और उसमें से औषध निकालना चाहिए कि ये बराबर इसको सही दवाई होगी, ये आपको बताना पड़ता है, यानी कि सोचना पड़ता है। इसीलिए दोषौषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायाम न स्खलति जातुचित। ये आज तो अभी तो ये शुक्र की ही बात चल रही है, तो उसमें स्खलन कम होना या ज्यादा होना, ये चिकित्सा ने भी यदि ठीक तरीके से ग्रंथ और उसका सही उपयोग नहीं किया गया तो चिकित्सा में वो रुग्ण का दवाई ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, तो उसको स्खलन कहता है। न स्खलति जातुचित, ऐसे वाग्भट कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्खलन है वो चिकित्सा में भी हो सकता है, शुक्र धातु प्रत्यक्ष में भी हो सकता है, वो बात अलग है। मगर ये हम सूत्र की बात कर रहा हूं तो उसमें भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बस्ती का अभी भी आवाड़ सर ने और दूसरे सर ने भी नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, उन्होंने भी इसका बहुत सारा उल्लेख भी किया, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की ये नहीं करता हूं। मगर जो मैंने खुद इस्तेमाल किए गए हैं, मैं ताराचंद में काम भी करता हूं तो उसमें उत्तर बस्ती भी करता हूं और ये भी बस्ती करता हूं, उसमें मुस्तादी यापन बस्ती और एरंडमुलादी यापन बस्ती, इन दोनों का बहुत इस्तेमाल मैंने किया हुआ है और उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। मगर मुस्ता की निर्मिति कैसी होती है ये आपने देखना जरूरी है। मुस्तादी यापन बस्ती, मुस्ता यानी कहाँ निर्माण होता है, द्रव्य जो अच्छे जल में ये निर्माण नहीं होता है, जहां खराब पानी है उसमें मुस्ता अच्छे तरीके से निर्माण होता है। इसका मतलब ये है कि इतने खराब पानी में इतनी अच्छी वनस्पति आती है, तो आपके दोष यदि खराब है तो उत्तर बस्ती में आपको शुक्र को अच्छा करना है और शुक्र में विकृति है, तो इसीलिए ये मुस्तादी यापन बस्ती यहाँ बनाया गया है। तो शुक्र चरक का जो कहना है कि कौन सी वनस्पति किसके लिए और उसका निर्मिति कैसी हुई है, ये भी सोचना हमारी जिम्मेवारी है, ग्रंथ की नहीं। वो तो कहता है कि मैंने तो हम सब बता दिया, जैसे आपको सोचना है वो सोचो, मगर फिर भी हमको सही तरीके के सोचने के लिए इतनी सारी छोटी छोटी बातें भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। और एरंड मूलादि यापन बस्ती, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। वैसा एरंड मूल जो है वो एरंड कहने के बाद वो मल प्रवृत्ति भी करता है, उसका तेल भी अलग इस्तेमाल होता है, उसकी निर्मिति उसकी भी कैसी होती है और कहाँ कहाँ होती है, इसका भी सोच आप द्रव्य गुण शास्त्र में कर सकते, द्रव्य गुण शास्त्र के हिसाब से कर सकते हो, तो आप खुद करो। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि किस तरीके से आपको सोचना है। तो इसका मैंने दोनों का बस्तियों का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। इसमें और एक बात है कि इसमें कुछ वनस्पतियों का इस्तेमाल इसके बारे में शुक्र के लिए बहुत करनी पड़ती है, जिसमें क्षीर विदारी है, विदारी आदि अयम मृत्यो ब्रुहणो वात पित्तः, ब्रुहणो तो ब्रुहण है, वो बहुत अच्छा उपयोग होता है। अश्वगंधा, कपिगुच्छु, केशर आदि वगैरह जो आदि द्रव्यों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कल्प में भी अलग अलग बहुत सारे कल्पों का इस्तेमाल होता है। इसमें चंद्रप्रभा है, महायोगरस है, अश्वगंधा आदि योग है और च्यवन प्राश आदि जो भी अलग अलग और तरीके के द्रव्य है, कल्प है,
उसका भी इस्तेमाल इस शुक्र के कम होने की वजह से या जिनको जरूरी है उनको किए जा सकते हैं। और उसमें भस्म का, इसमें अभ्रक भस्म जो है इसका इस्तेमाल वो शतपुटी और सहस्रपुटी औसत 2 तरीके के हैं। आजकल जो मिलता है वो सिर्फ शत नाही, साधा काय त्याला म्हणतात, निश्चंद्र अभ्रक मिलता है। उसके लिए 33 ये देने पड़ते हैं, मगर फिर भी वो निश्चंद्र तो ये बेसिक है नहीं। मगर उसमें यदि शतपुटी मिला या सहस्रपुटी मिला तो उसका इस्तेमाल ज्यादा इस्तेमाल जो है वो को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आप बाकी वंग भस्म है, स्वर्ण भस्म है, आदि रौप्य भस्म है, ऐसा इसके भी बारे में आपको इस्तेमाल कर सकते हो। और अलग अलग मात्रा में, अलग अलग कालों में और अलग अलग अनुपान के साथ से ये, और कुछ द्रव्यों के साथ से भी ये भस्म का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो मैंने भी किए हुए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। स्वर्ण कल्प में भी है, उसमें वसंत कुसुमाकर भी है, सिद्ध मकर ध्वज है, इसमें बहुत सारे कल्प भी हैं। और इसमें ये वसंत कुसुमाकर तो बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। आजकल तो भारत ये जो पहला आया हुआ है, तो भारत डायबिटीज इसमें बहुत पहला आया हुआ है, क्योंकि डायबिटीज के बहुत सारे लोग भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं। मगर उनको वसंत कुसुमाकर का इस्तेमाल तो होता है ही, उसमें उनको उपयोग होता भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अस्थि छोड़ के बाकी सब जो है वो सब उसके हेतुओं में भी आए हुए हैं, कारण में आए हुए हैं, संप्राप्ति में भी आए हुए हैं दोषी। तो उसके लिए ये वसंत कुसुमाकर, मगर ये शुक्र धातु के लिए वसंत कुसुमाकर का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होता है। ये मैं जो करता हूँ वो सिर्फ सुबह 1 गोली या शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ भी कुछ लोगों को मैंने दी हुई है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल और उपयोग होता है। सिद्ध मकर ध्वज का उपयोग सिर्फ सुबह और रात को दोनों वक्त किया जा सकता है। या तो घी के साथ ले सकते हो या सिद्ध घी के साथ भी ले सकते हो। यदि उसको मन का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले बताया ओजक्षय में, ओजक्षयेति दुर्मना, तो उसमें उपयोग सुबह और रात को यदि उसको महाकल्याणक घृत के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। 1 चम्मच महाकल्याणक घृत वो थोड़ा गर्म करके इसमें गोली पीसने की और उसके अच्छी तरीके से चटाने का, तो उसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। गुनगुना गर्म होना बहुत जरूरी है, ठंडा नहीं लेना है। आसवारिष्ट में इसमें अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षसो वगैरह ये सब बहुत सारे कंपनियों में भी आसवारिष्ट बनाए हुए हैं, मगर अश्वगंधारिष्ट का बहुत अच्छा उपयोग होता है। ये खाना खाने के बाद व्यानोदान यानी कि व्यान और उदान काल में दिया जाता है। ये कम से कम 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी ऐसे दिए जाने से इसका अच्छा उपयोग होता है। कुछ मैं आयुर्वेद रसशाला का भी काम करता हूँ, तिलक में हो तो रसशाला का भी काम देखता हूँ, तो उसका उसमें भी फोर्टेक्स करके एक टैबलेट है, वो आयुर्वेद रसशाला में बहुत मामा गोखले वगैरह जो लोग जब थे उसकी वजह से वो उसके वक्त से ये सब ये टैबलेट जो है वो बनाई जा रही है। इसमें बहुत सारे वनस्पति है, उसमें अश्वगंधा है, कर्पूर है, लवंग है, वंगभस्म है, केशर है और जाति फलादि वगैरह वो बहुत सारी है। और विशेष बात करनी है तो ये शुद्ध कारस्कर ये जो थोड़े अलग वनस्पति है, ये उसको भी शुद्ध करके लेना पड़ता है, जो हम रसशाला में करते हैं, बनाते हैं, और उसका इतिहास भी बहुत अच्छा मिलता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को ये शुक्र धातु कम होता है उनके लिए ये सब
या 1 गोली या 2 गोली सुबह और रात को दोनों समय, या बाद में 1-1 गोली भी दी जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब पुरुषों के लिए भी है। शुक्र की निर्मिति स्त्रियों में भी होती है। यदि उनका शुक्र कम होता है तो उनको भी इसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें भी ये गोली जो है टैबलेट फोर्टेक्स, इसका इस्तेमाल मैंने खुद करके देखा है। अनेक लोगों को इसको उपयोग भी हुआ है। और मासानुमासिक जो एक बातें बताई गई है वाग्भट चारित्र स्थान में अध्याय 2 में बताई गई है, तो उसका भी इस्तेमाल कई वक्त इसमें किया गया है। तो उसमें भी ये रसायन वाजीकरण जो चिकित्सा है वो अच्छी तरीके से करना, और वाजीकरण जो है इसमें कई बातें होती है। जितना हो सकता है, थोड़ा समय भी थोड़ा है, तो थोड़े समय में जितनी भी बातें हो सकती है ये बताने की मैंने आपको कोशिश तो की है। और जितना भी हो सकता है मेरे ख्याल से आप सबको यदि तो जानकारी मिली होगी, मेरे ख्याल में तो सवाल भी कर सकते हो, मगर बाद में कर सकते हो। यानी कि ये होने के बाद आप सवाल करो तो मुझे आसानी रहेगी कि आपको क्या पूछना है और किसकी वजह से आप पूछ रहे हो। मैं तो जवाब देने में यानी कि बहुत अच्छा रहेगा कि यदि जो कंट्रोल कर रहे हैं ये कार्यक्रम को, उन्होंने यदि परमिशन दे दी तो मैं सवाल के जवाब भी दे सकते हो। आप अच्छी तरीके के लोग हो, अच्छी तरीके के अभ्यास करते हो, आयुर्वेद शास्त्र को सबको बताओ, सब लोगों के लिए करना, विद्यार्थियों को बताना। ऐसा नहीं है कि यदि चरक और सुश्रुत या वाग्भट मन में लेके ऊपर जाते तो आयुर्वेद हमारे पास भी नहीं जाता। तो ये हमारा अधिकार होता है, क्योंकि हम जिंदा है। तो जिंदा लोगों ने आयुर्वेद दूसरे लोगों को बताना बहुत जरूरी है, और उन लोगों तक पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। ये सब बातें कह के मैं आपसे जुदाई चाहता हूँ, और आपको नमस्कार भी करता हूँ और वंदन भी करता हूँ कि आप सबने ये सब सुना, और मुझसे बहुत अच्छा लगा। ये सब बातें थोड़ा अलग सब्जेक्ट लेके आपने ये सब बातें की है, तो बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चंस आर देयर, सम कुछ क्वेश्चंस है सर वहां पर। साइकोलॉजिकल कुछ ट्रीटमेंट बता सकते हैं क्या इसमें? हाँ, साइकोलॉजिकल की ट्रीटमेंट तो बहुत है। साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो यानी कि ये जो ओजक चाहिए तो गोपीशु ध्यान शोक श्रमादि भी विभेति दुर्बलो विश्रम, ये तो साइकोलॉजी की बात हुई। तो शुक्र के बाद की भी उसको ये होता है। तो इसमें मैंने शिरोधारा की बात दोहरा रही थी। उसमें देखो कि मैं शतावरी और जटामौसी की तेल करता हूँ, तेल बना के उसकी शिरोधारा करता हूँ, उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। वैसे उसका शिरोधारा ही करना ऐसा भी नहीं है, पूरे शरीर पे भी उसकी धारा की जा सकती है। मैंने वो बहुत कम की है पूरे शरीर में। साउथ में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, वो मैंने देख के भी आया हूँ। मगर ये शिरोधारा का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, ये यानी कि उपयोग होता है, ये उनको कहना है। यस सर, यस। ईडी के लिए क्या दे सकते हैं सर? ऐसे कुछ पूछा है उन्होंने ईडी के लिए। ईडी क्या है डॉक्टर? ईडी क्या? प्लीज आस्क योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज। Ejaculatory dysfunction. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ओके, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हाँ। उसके लिए आपको कुछ उसको अभ्यंग जो है ना, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। जो मैंने इसके द्रव्य भी बनाए हैं, उसका घी या तेल बना के, या घी तेल मिलके यमक स्नेह बना के उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। जिसमें जो खाने में जो हम द्रव्य इस्तेमाल करते हैं, ये वाजीकरण भी जो द्रव्य है, जैसे अश्वगंधा है या शतावरी है या श्री गोपाल तेल का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ऐसा यानी कि बहुत सारे, ये जो मैं घी जो बता रहा था उसमें ये जो द्रव्य है, इनका घी बना के उसका इस्तेमाल
मैंने उसको लगाने के लिए दिया था, अभ्यंग के लिए दिया था। वो क्या करना पड़ता है उसमें, कपास के ऊपर वैसे पहले तो लगा सकते हो उसके ऊपर सब जगह, मगर बाद में वो उसके ऊपर कपास के ऊपर थोड़ा लगा के वहां रखना पड़ता है, और कम से कम 5-6 घंटा वहां रहना जरूरी है। इसी रात में एक बार किया और वहां कपास में लगा के उधर ही रख दिया, तो सुबह तक वो वहीं पे रहता है, और उसका उपयोग इसके लिए बहुत अच्छा होता है, इजैकुलेशन के लिए। वो बाद में वो तुरंत उसका इस्तेमाल दूसरे दिन देखना बहुत जरूरी नहीं है कि इसका इस्तेमाल हुआ तो चलो उसका इजैकुलेशन कम हुआ या इजैकुलेशन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हुआ है। ये ऐसा तुरंत एक दिन में नहीं, वो कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसा उसका उपयोग करना पड़ता है, और पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि ये महीने जो है 3 महीने 4 महीने, वो आप इसका परीक्षा मत लेना, ये तो द्रव्य की परीक्षा हो गई, ऐसा मैं उनको पेशेंट को बता रहता हूँ। और सही तरीके से बताया तो वो पेशेंट फॉलो करते हैं, और 4 महीना या 5 महीना जो भी आप बता रहे हो, जैसे वैद्य बताता है उस हिसाब से वो रुकते भी हैं। वो बाद में उसका इस्तेमाल यानी कि उपयोग बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को कोई बच्चा नहीं होता या हो नहीं रहता है, उनको भी अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि शुक्र धातु अच्छी तरीके से निर्माण होता है। बाहर आना, अच्छी तरीके का शुक्र बाहर आना, ये भी जरूरी होता है। उसके लिए भी ये श्री गोपाल तेल का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। पथ्य अपत्य क्या होगा सर इसमें, और मैनेजमेंट आपने जो बताई प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, ये सेम है? और एक अलग सवाल आया है, और कुछ पथ्यापत्य भी बताइए, लाइक पथ्यापत्य में कैसा है कि 2 तरीके के पथ्यापत्य है। वैसे ठीक है कि खाना और पीना और आहार और विहार ये सब हम बोल सकते हैं, मगर इसमें पाला भाजी जो है ना, ये बहुत तकलीफ होती है। छाछ या दही ये जो है इसका, वो यदि बासी है तो इसका अच्छा यानी कि इस्तेमाल किया तो उससे कफ और पीत दोनों खराब होते हैं, और उसकी वजह से आगे के धातुओं का निर्माण जो है वो ठीक तरीके से होता नहीं। ज्यादा से ज्यादा बासी चीजें जो है वो नहीं खानी चाहिए। और जैसे हम वैसे पनीर तो पंजाब में भी बहुत खाते हैं, मगर उधर क्या बच्चे होते नहीं, क्या होते हैं, मगर इस तरीके से जहाँ भी जैसे महाराष्ट्र में और जगह भी जिस तरीके से किया जाता है, उस तरीके का खाना हर एक राज्य में आप अलग अलग तरीके का खाना मिलता भी है, और एक बार खाना 2 बार खाना ये बात अलग है, मगर हर एक आप जहां हो उसके जो तरकारी मिलती है वो लीफी वेजिटेबल्स हो या फ्रूटी वेजिटेबल्स हो, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मैं फ्रूटी वेजिटेबल्स की करता हूँ, और उसका बहुत अच्छा उपयोग भी होता है। फल में भी आम और अनार और दाड़िम। सर आप ज्वाइन हो गए क्या? आर यू ज्वाइन? Okay sir, just now your turn is there, so Dr. Sriram, please ask your question directly. Your raise hand किया ना आपने, Dr. Sriram? Yes sir, please. Loss of शुक्र। Dr. Sriram, Raju sir, please. एक सवाल आया हुआ है, मैं उस वक्त तक कुछ जवाब दे सकता हूँ क्या? हाँ सर, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, वो लॉस ऑफ लिबिडो करके एक आया है, जैसे मैथुन अनिच्छा करके वो शब्द आया हुआ है, लॉस ऑफ लिबिडो। तो उसके 2 तरीके का सोचना बहुत जरूरी है कि वो क्या काम करते हैं, और उनको ये जो है मधुराम्ल लवण, इसका उपयोग तो बहुत अच्छा होता है, मगर कटुतिक्त कषाय रस का यदि ज्यादा इस्तेमाल किया गया है तो इससे ये लिबिडो जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और यदि ज्यादा तीखा खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये होता है। तो मैथुन, उसके कारण भी कुछ अलग अलग होते हैं। कुछ लोग प्यार तो करते हैं और प्यार के बाद शादी भी करते हैं, मगर शादी के बाद उनको ये ख्याल आता है कि मेरी लॉस ऑफ लिबिडो है,
वैसे उसको पता चलता है, मगर उनको शिरोधारा और जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसे तरीके का घी या श्री गोपाल तेल वगैरह जो लगाने के बाद इसका ये जो लिबिडो है वो कम होने लगता है। मगर इसको पहले मैंने बताते वक्त 4 महीने 3 महीने 4 महीने बताए थे, मगर कुछ लोगों को शायद 1 साल भी इसको ले सकते हैं ये पेशेंट जो है। तो इसका कारण और भी कुछ होता है, इनके माँ और पिताजी की हिस्ट्री, यदि उनको नया नई शादी हुई है, 20-25 साल का लड़का है, तो उसको माँ और पिताजी की भी हिस्ट्री थोड़ी सी लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो हेतु होते हैं, उनके हेतुओं में भी इसके ये मैथुन अनिश्चय भी है, उसका कारण हो सकता है ये। मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर वो पूछना पड़ता है। मगर ऐसे तरीके के हिस्ट्री में ये मिल जाते हैं। तो लॉस ऑफ लिबिडो के लोग तो मिलते हैं, मगर जैसे मैंने अभी ट्रीटमेंट जो बताई, वो ट्रीटमेंट और इसमें शिरोधारा भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। और इसमें ज्यादातर इस्तेमाल सर्वांग धारा, जिसको शिरोधारा कहते हैं, वो सर्वांग धारा जो है इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है, मगर ये बहुत दिनों तक करनी पड़ती है। Yes, sir. Yes, definitely. Thank you very much. One more question is there from Dr. Brijesh. Intercourse contraindicated है क्या ट्रीटमेंट के लिए, बताइए। क्या इंटरकोर्स करना मतलब ट्रीटमेंट के दौरान इंटरकोर्स करना कॉन्ट्राइंडिकेट है क्या? हाँ, वो पता चला मुझे। जिन लोगों को कौन से कारण की वजह से ये ट्रीटमेंट करनी है, कुछ लोगों को लड़की चाहिए, कुछ लोगों को लड़का चाहिए, या कुछ लोगों को मैथुनासक्ति नहीं है वगैरह, उसके हिसाब से ये मैंने जैसे आपको अभी बताया कि यदि शुक्र मैथुन अनिच्छा है, तो उन लोगों को जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो उनको कम से कम 1 साल तक मैथुन नहीं करना है। मगर ज्यादातर लोगों को जो भी यूजुअल प्रॉपरली लोग हैं, जिनको हम वाजीकरण चिकित्सा करते हैं। सर आप म्यूट हो गए, सर आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। उसके बाद आप बता सकते हो कि इसका इस्तेमाल आप करो, यानी कि आप वाजीकरण ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 या 3 महीने के बाद आप ये मैथुनासक्ति जो है वो उनकी अनिच्छा जो है कम हो जाएगी और उसका उपयोग आपको हो जाएगा। यस सर, यस। और कुछ सवाल है? कम हो तो कैसे बढ़ाए? एक और सवाल, लास्ट वाला सवाल हम लोग लेते हैं सर का। यस, तो मोर्टेलिटी के लिए तो यानी कि उसका ये जो इस्तेमाल जो है वो पहले उसको शोधन करना पड़ता है, और उसके हेतु में कुछ कारण तो होता ही है, और शोधन करने के बाद और उस हिसाब से कुछ लोगों को तो हर ऋतु के हिसाब से शोधन करना पड़ता है, यानी कि वमन भी करना है, विरेचन भी करना है, बाद में बस्ती भी देना है, इसके बाद उनको उत्तर बस्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है। और तो इसमें 6 से 8 महीने तो जाते ही हैं, और उसके बीच में आप पाचन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, पाचन चिकित्सा वगैरह करने के बाद आपको भ्रूण चिकित्सा करनी है। और ये वृक्ष और भ्रूण चिकित्सा इकट्ठा करने के लिए जो भी वनस्पतियां मैंने अभी पहले बताई थी, उसके वनस्पतियों का इस्तेमाल उसी वक्त करना है, और उसी वनस्पतियों का घी और तेल इसका इस्तेमाल लगाने के लिए भी करना है। तो उसकी वजह से ये सब तकरार जो है वो कम हो जाती है, और उसको यानी कि बच्चे जो होते हैं उसके बाद भी हो सकते हैं। मगर पहले जैसे मैंने पहले ट्रीटमेंट में 3 महीने नहीं करता हूँ बताने के लिए, ये तो बाद में 6 महीने बोलता हूँ। कुछ वो पेशेंट किस तरीके का है ये देखने के बाद आप यू कैन डिसाइड एंड यू कैन टेल टू द पेशेंट that after how many days or how many months you can go for intercourse. Okay? Yes sir, yes, definitely. Yes sir, thank you very much sir for the for all your answers and the presentation. Now moving with our last session, I would like to invite Dr. Ashokan sir, who is from Parul University from PTSR department. So welcome sir. Are you there, sir, Dr. Ashokan, sir? Yes, I'm there. Yes, definitely. Yes, sir, please. Can I start sharing? Yes, you can share, sir. You can share.
And your topic, today's topic is efficiency of Vajikarana Kalpats. So I think this will help our Vaidyas in practice also. Efficiency of the Vajikarana Kalpats. So welcome, sir. Yeah. Just a minute. I'll be sharing. I'll be starting my session soon. Okay, okay. Just a minute. Kindly bear with me for 1 or 2 minutes. Okay, okay, sir. Okay, okay. Yes, yes, definitely. Dr. Sriram, is there any question as your hand is raised? You can ask your question, sir. Is there any question? Just we have 2 minutes, so And to whom? we can discuss. And to whom? Whom we can discuss? ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ Yeah. शेयर स्क्रीन है मैडम Yes, sir. Yes, please. सर श्री गोपाल तेल कौन सी कंपनी का अच्छा है? ये एक सवाल ले तब तक बता दीजिए कुलकर्णी सर. Is the screen visible, madam? श्री गोपाल तेल. Sir, you can share your screen. Yes, yes. हाँ, he can share, no problem. क्योंकि मेरे पास बहुत सब्जेक्ट है तो मैंने वो उसके इंग्रेडिएंट्स तो अभी नहीं ये नहीं. ओके. अरे एक Is there any problem, sir? You can directly you can tell us about your subject without PPT. If is there any issue with you as you are traveling? मैडम may I talk? मैडम मेरा मुझे जरा होस्ट बना दें, को-होस्ट बना देंगे बात कर रहा हूँ. सर बनाया है ऑलरेडी आप. नहीं एक बार और बना दीजिए. यस 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 सर बोलिए कुलकर्णी सर, तब तक बोलिए आप. मैं तो बोलता ओके, नो प्रॉब्लम. जस्ट 1 मिनट. मैं तब तक बात करते रहता हूँ. श्री गोपाल तेल में वो अश्वगंधा, शतरे और सैफरन है, सैफरन केसर, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है. और किसी को कुछ सवाल है या किसी ने कुछ पंचकर्मा वगैरह उसमें किया है और बाद में इसका इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसे कोई वैद्य लोग हैं क्या वहाँ? थैंक यू फॉर मेकिंग मी होस्ट. ओके. हिमांशु सर कुछ पूछना है प्लीज. सर श्री गोपाल तेल में ज्योतिषमती तेल और अश्वगंधा तेल और एड ऑन करके काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं. अच्छा. Hello. Yes sir, yes, please continue sir. It's visible. My screen just make it clear. Yes sir, it's visible. Yes, 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 please. Yes, thank you very much for Ayush Darpan and Shilpa madam, as well as Naveen Joshi sir. Sorry for the delay and the technical due to technical reason.
Here with I'm very much happy to be with you, and I happen to be lucky to hear from Ramdas sir and Kulkarni sir and Nagendra sir. So there was some disturbance in between. I would we will move on to some of the clinical experience, a little bit which I have in my gynecological practice, being the male partner treatment along with that of the female treatment. So in the first slide, already Kulkarni sir, what he has elaborated about the Vrishya and Vajikarana, I was picturizing it, and he has told almost and even told the well as every aspect of the clinical practice. So to highlight some of the so the Kalpa Prayoga varies from place to place and region to region, Desha and Kala, so, and Yaukika, which is suitable for that particular patient. We will be moving on with some of the practical experiences. In mind, whatever the queries which we came across in the session, what with bit experience which I have, मैं हिंदी और अंग्रेजी में मिला के बोलने की कोशिश करूंगा. नमस्कार. So धन्वंतराय नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सदाशिव समारंभां व्यासशंकर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा. It will be my dishonest to my Guru Parampara if I don't mention my teacher in the field of Vajikarana, who sow the seed of knowledge about the Vajikarana Tantra, none other than our beloved B.S. Prasad sir, and he was our teacher in Kriya Sharira, and wherein he started us teaching, though he was taking Kriya Sharira, his speciality of andrology has introduced to us in the first year of BAMS. So with lot of reverence to his teaching in BAMS, I would like to present some of the contents of my slides, like introduction, common formulation used for Ashtavida Shukra Dushti Chikitsa, Ekala Dravya Prayoga herbal in Shukra Dushti Chikitsa and Vajikarana, compound drugs in Vajikarana, and references and conclusion. So as we know in the Vajikarana, Shalyadam Shajara Vrishan, the Ashtavangani Tasya. So after treating every, and Rasayana and Vajikarana has been kept in the last content of Ashtanga Hridaya and Ashtanga Sangraha, whereas it has been elaborated in the beginning of Chikitsa, Swastasya Urjaskaram Kinchit Vyadhi Prashanam. So that concept of Charaka has been incorporated in the end. After the Dosha Shodhana and Chikitsa of Vyadhi, Urjaskara Chikitsa has been elaborated by Vagbhata. So we know that Sushruta has contributed to the concept of Alpadushta Shrina Vishushkaretasam Apyayana Prasadana Upachaya Jananamityartam. So wherein they are telling Alpata, Apyayana, Dushtata, Prasadana, Kshinata, Upachayata, Vishushkata, Jananartham, Praharsha Jananartham is the ultimate aim. So Praharsha Jananartham is the indication with which we come across a part of patient without any much pathological variation, and they take often with OTC medicines. So they go with the indications and they take the medicines. If they land up in complications, they come to us. At the same time, we come across in the field of infertility, male infertility or subfertility, हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है अल्पता and क्षीणता, whereas विशुष्कता are all allopathic other medicines. हमें मिलता है कि विशुष्कता, विशुष्क रेतसा. So विशुष्क रेतसा so we need to put some light on this particular very fundamental in the treatment of sir, your voice is breaking. We will stop somewhere and we will henceforth I assure maybe we not be breaking the voice. Then elaborated. We come to the knowledge that the
Vrishanam Moolam Shepascha is the anatomical, whereas the physiological base of testosterone has been elaborated in the context of Sushruta's contribution as Stano Moola Vrishanaucha. The Stano Moolata is embryologically based as the Shukra Sroto Moola, which is an embarkment by the contribution of Sushruta, whereas Majja Dhatu is a precursor cell for the manifestation and the growth and development of the male genitalia, as well as for the differentiation of precursor cells into the primordial cells in the spermatogonia and spermatogenesis, is the wonder contribution of Ayurveda to the field of infertility or subfertility and andrology. Then coming to the Samanya Nidana, they are telling that Jaraya Chintaya Shukram Vyadivik Karma Karshana Kshayam Gachatya Anashanat. Anashana is one of the cause, Ahara Hetu, and the Trivida Stristona Chikitsa has been told in Ayurveda, Nidra and Brahmachari. So if I say Anashana B, so Vyadhi Karma Karshanat, so Vyadhi are secondary to some other diseases. If we analyze the history taking part from the age of the patient, we have to Desha Kala Pariksha, as well as the occupation of the patient. It is working in atmosphere, hot atmosphere, or very temperate climates, furnaces, a cobbler's work, so such other things, or desktop work. If it is happen to be desktop work, also and the lifestyle like if we think, we can say that it may be because of the tight dressings or undergarments or jeans pant, which alters the gait of a person nowadays, and excessive use of mobile phones, 1, 2 in 2 pockets, and third one on the chest. So this excessive use of mobile phones and radiation, secondary to which might have led to the altered functions of sperm count, as well as the pathological changes like a morphological variation. So these tailless form, headless forms, etc., are two-tailed motion defects or motility defects, etc. So with keeping these things in mind, now I am not deviating much, be coming back to, and even the scattered references of Ayurveda from Sutrasthana of Charaka Samhita, if we analyze, Adharaniya Vega, they have mentioned, and Vata Vriddhi Kara Bhava, or the Shukra Vega Dharananam Shandyata Karanam Shreshtam. Vega Dharana is contraindicated, whereas Brahmacharya Paripalana is indicated. So Pravritti Unmukhatvam Vegitvam. So whenever there is a Pravritti Unmukhata of Shukra, then it should not be, Vega Dharana should not be done. Whereas Brahmacharya Paripalana of Netaha or Vaivahikataka, or that is indicated in Ayurveda. Then coming to the specific questions which we got now in this session, we have nocturnal emissions, which is maybe physiological to pathological range. So we can come across in Charaka Samhita, Vrishya Mamsarasa Prayoga, Akara Karabhadi Yoga, which is Tambana in Guna. So we can use, and Kegel's exercise and pelvic floor exercises along with healthy dietary pattern. Sufficient quantity of liquid intake, fluid, fruit juices, milk, ghee. So these can prevent the nocturnal emissions, and avoiding, if in the Brahmacharya period, avoiding the Shukrala Dravya at night time and having them in the morning time. So that will be better to impart Bala at the same time, prevent the nocturnal emissions, if the patient is planning for conception or impregnation rather. तो इसके बाद हम देखेंगे इरेक्टाइल फंक्शन के ट्रीटमेंट, जैसे न तस्य लिंग शैथिल्यम स्यात्. What are the formulations which will prevent linga shaithilyata? So the shukra, the shandata kara hetus or klaibya hetus have been elaborated by Charaka Samhita in Univapa Prakarana. What is in the Univapa Chikitsa Prakarana? They have, and the discussion goes on in the Himalaya Pradesh, and where they are telling that the elaboration goes like, Shukram hi dushtam sapatyam sadaram badate naram. It doesn't leave alone the male, but it affects the whole family and the children. So that has to be prevented. That is a weightage given to by Shukra by our acharyas. Then Brahmani Gutika, Vajikarana Grata Prayoga, Vajikarana Pindarasa Prayoga, Vrishya Mamsarasa Yoga, Vrishya Kukuta Mamsarasa Prayoga, Vrishya Pipali Yoga, ये सभी बताए गए हैं. उसके अलावा Yavahu Kalpanas have been Charanayudaha is the word mentioned by mentioning about the Mamsarasa Prayoga, and Ajamamsarasayana is also popularly used in Kerala
Whereas for a non-vegetarian patient, this can be applied, whereas we cannot give it in the vegetarian patient. So we can go with herbal drugs like Ashwagandha Valeha. So Keval Ashwagandha Valeha or Nirami Karana prior to that we will be touching with the usage of Guduchi Prayoga. Then premature ejaculation, we can use Vrishya Pippali Yoga, Akara Karabhadi Yoga, Jati Faladi Yoga, then counseling, psychological counseling, how to foreplay. So many times we come across patients who don't know the science or art of Vatsyayana. So it is told, it is not a vulgar in Ayurveda or Indian system of medicine. It has been given one of the Purusharthas. Kama is one of the Purushartha. So Purushartha should be achieved. How healthily it can be achieved, how we should mature to achieve it. So that maturity can be imparted by usage of, and we can prevent premature ejaculation by psychological counseling, especially newly married couples and male partner complains of this particular complaint. Then apatya jananartham shashtikadi gutika, apatya santanakara swarasa prayoga, apatyakara kshira prayoga, apatya janaka kshira, garbhadanakara yoga, vrishya pupalika yoga, and apatyakara gruta are some of the references which we come across. Other than that, में हम देख सकते हैं, हम जैसे कि मैक्सिमम पेशेंट्स the range हमें जो मिलता है वो ओलिगोस्पर्मिया वाले ही होते हैं, ट्रांसिएंट हो सकता है. सो जरया चिंतया, जरा इज वी हैव टू टेपर इट, चिंतया शुक्रम. सो चिंत्यानां चाति चिंतनाति रसवः श्रुतो दृष्टि. एंड टू रिमेंबर, टू रिमाइंड, स्तन्य जनना, स्तन्य शोधना, शुक्र जनना, शुक्र शोधना has been mentioned by आचार्य चरका in दशैमानी. कहीं पे भी बताया नहीं है आर्तव जनक और आर्तव शोधक क्या देना चाहिए, नहीं बताया, क्योंकि रस के बारे में बता दिया है. तो ओलिगोस्पर्मिया के कॉन्सेप्ट में हमें एनालाइज करना है. चिंत्यानां चाति चिंतनाति वन ऑफ द कॉज. सो जरया चिंतया शुक्रम व्याधिभिः कर्मकर्षणात्. सो इट इज ए ट्रांसिएंट चेंज. ओलिगोस्पर्मिया में भी ए ट्रांसिएंट चेंज, उसको हमें कैसे ठीक करना है ये हमें एनालाइज करके वो पेशेंट का हिस्ट्री डिटेल, फैमिली हिस्ट्री डिटेल लेना है. वही फैमिली हिस्ट्री डिटेल लेना है क्योंकि हमें बताया गया है चरक सूत्रस्थान में कि वाजीवातिबलो येन येनयात्य प्रतिहिताः स्त्रियाः येन येन एव उपचीयते. Then it is mentioned that santanasya santanakaram, that is, I'm not rightly getting that word of it. It's a beautiful reference of Charaka Samhita where eugenetics of Vajikarana has been mentioned. The apatya santanakaram, right? So it is apatya santanakaram. It is keeping up the lineage. If we understand the meaning told there by a commentator, it keeps up the lineage of that particular person or an individual. So keep up the lineage with a genetic contribution. That is the beauty of Ayurveda there. Then it is not producing an offspring. It is an supraja, but it is keeping up the good qualities in a person to the next generation. Then Panchavriksha, that is Panchakshira Vriksha Kashaya or Kshira can be given. Vrishya Mamsa Gutika can be given. Vrishya Mamsa Rasa Prayoga and Gruta Vrishta Vrishya Dravyas can be given. And Pupalika Yoga are direct references. And our elders and the previous the Ramdas sir have mentioned about the and even Kulkarni ji has mentioned about the Shukra Dushti according to the dosha should be analyzed. So Dashamulak Vatha Kshirapaka can be given as a simple remedy, early remedy. Then if even in premature ejaculation we can give Dashamulak Kshirapaka along with the Jati Faladi Yoga, or even the premature ejaculation can be prevented by Agni Tuntivati. Then with proper Anupana of Tambula Surasa. Then Kshirabala, Mahanarayana Tela, Anuvasana Basti, Falagrata, Uttarabasti, and according to the dosha we can give Uttarabastis. Then Vatahara Brahmana Balyak Vata Dravya Prayoga, Drakshadi or Vidaryadi Ganakwatha, Ashwagandharishta, Saraswatarishta, Dashamula Rasayana, Amalaki Rasayana, Sukumara Grata, Sukumaranam, Ishwaranam, Vasumatam Rasayanam. So that Sukumara Rasayana can also be advised. Then coming to the Pittaja Shukra Dushti, Brahatyadi Ganasiddhakwata, Panchatiktaka Gritapana, Trivrutta Valeha for Virechana, Kshira Grita Prayoga. So Pittasya Upakramaha, whatever is being told. So even the Shukra Vruddhikaram Maitri Gana or the Suhurat Parishad has been told by Acharyas. So Pittasya Upakramaha includes all those things which are told. The Harmya and Manina Murasam Dhrutihi, then the Nisha Chandrama Snana. So these things impart
the Vrishyatva or Vrishatva to a person. Then, sorry for that. Then Panchavalkala Kshira Siddha, Panchavalkala Siddha Kshira Prakya can also be given. Amalaki, Kevala Amalaka Rasayana. And again, Kulkarni sir has elaborated that the Rasayanam Vajikaranam. So they are interlinked. Why? Masha Parna Brutam Denum Grushtim Pushtim Pushtam Chatustanim. So the Kshira, how it should be collected? Masha Parna Brutam Denum. They have mentioned beautifully that Masha Parna Bruta Denu Kshira should be taken and it should be used for the purpose of Rasayana Prayoga. And Hastamalaka Prayoga has also been told. After proper Urdhva Anulomana and Adho Anulomana, the Kevala Amalaka Rasayana Prayoga is also being elaborated. Though not possible, we can adopt in aspermia conditions. And it's interesting, quite interesting that in one of my patients, they are getting result with aspermia condition by this particular type of approach. Then Chavana Prasha Rasayana and Kushmanda Rasayana, then Chandana Sava, Sarivadya Sava, as well as Draksharishta can be useful in Pitta Shukra Drishti. In addition to that, Kamaduga Muktavati, Uttarabasti with Falagrata, Shatavari Adigrata ये दे सकते हैं. आस्थापना बस्ती के लिए बहुत सारे मुस्तादी यापना बस्ती का भी प्रयोग बताया गया है अगले पहले ही, और विदारी आदिक्वाद के योग भी हम यूज कर सकते हैं. उसके अलावा शतावरी आदि घृत पित्त जो विकार में बताया गया योनि व्यापक प्रकरण में, उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं. उसके अलावा है गुड़ूची आदिक्वाद पान, गुड़ूची पद्मकारिष्ट ध्वानका रक्त चंदनम, इस कॉम्बिनेशन का पित्त श्लेष्म हरत्व होने के नाते वो भी यूज कर सकते हैं. उसके अलावा आमपाचनार्थ भी हम गुड़ूची आदिक्वाद पान कर सकते हैं. देन चंद्रप्रभावटी गोक्षर आदि गुग्गुलु ये हम लाभ हैं जो प्रमेह प्रकरण में बताया गया है, और शुक्रवह स्रोतस में भी मूत्र विकार में भी काम आते हैं. जैसे कि पायोस्पर्मिया है तो उस कंडीशन में कफज शुक्र है, तो उस कंडीशन में भी हम ये यूज कर सकते हैं. तो कफज शुक्र दृष्टि में हम चंद्रप्रभावटी या गुक्षरादि गुग्गुलु भी यूज कर सकते हैं. देन मदन फल वमनार्थम अभी हम देख सकते हैं, तो पैच्छिल्यता हम दिख सकते हैं शुक्र परीक्षण में. देन त्रिवृत अवलेह विरेचना, आरग्वदादि त्रिफलादि क्वाथ स्थापनार्थ, शतपुष्प महानारायण तैल अनुवासनार्थ, नस्य अणुतैला, और भी है क्षीरबला आवर्तित नस्य कर सकते हैं जिस पर FSH बहुत पीक है, मतलब जिसपे FSH का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में हमें उसको टेस्टिकुलर नॉन रेस्पॉन्सिव कंडीशंस जो होते हैं, तो उसमें भी हम नस्य का लाभ उठा सकते हैं. उसके अलावा है अश्वगंधारिष्ट ये सब गुग्गुलु एंड महायोगराज गुग्गुलु वंध्यत्व प्रकरण, स्त्री रोग प्रकरण में और वंध्यत्व प्रकरण में इंडिकेटेड है, जो हम यूज कर सकते हैं. दशमूल हरित के अवलेह का यूज कर सकते हैं. लशुन क्षीर पाक का यूज हम आवृतावस्था में कर सकते हैं. आवृतावस्था वात दुष्टि का आवृतावस्था में, अपान वात के आवृतावस्था में वृष्यवात हराणम एरंड मूल, श्वेत एरंड मूल का प्रयोग हम कर सकते हैं. अन्य धातुओं संसृष्टम तथा अष्टमम, अवसादि तथा अष्टमम जब बताया है, तो त्रिवृत चूर्ण के से विरेचन करवाना है, संसर्जन कर भी करवा सकते हैं. ग्रंथीभूत शुक्र दृष्टि में प्लॉटेड अपीयरेंस, डिलेड लिक्विफेक्शन टाइम जो हम देखते हैं लैब पैरामीटर्स में, उसमें हमें ग्रंथीभूत शुक्र दृष्टि की चिकित्सा जो भी बताए हैं, जिसमें से हमें अश्मभित सिद्ध घृत बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, बना के पेशेंट को दे सकते हैं. और वात कफ शमनार्थ रिपीटेड शोधन हम कर सकते हैं. और वमन 2 हम थायराइड डिस्फंक्शन एसोसिएटेड विद मेल इनफर्टिलिटी कम केसेस देखे जाते हैं, मगर उस कंडीशन में हम वमन के बाद हम ये उष्ण स्निग्ध पहले प्रयोग करना होगा, उसके बाद शीत स्निग्ध प्रयोग करना पड़ेगा. तो ये करके हम इसको निकाल सकते हैं. उसके निरामीकरण होने के बाद शीत स्निग्ध प्रयोग जैसे कि घृतक्षीर आदि. देन कुपूर्ण का कुणप शुक्र दृष्टि में हमें क्या करना चाहिए, रक्तज या अन्य धातु पर संसृष्ट, इस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि अति मैथुनता एज वन ऑफ द कॉज, निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा पहले ही बोल देना है. उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रीनल कैल्कुलाई रिलेटेड कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन में हमें बताना पड़ेगा कि ऐसा मैथुन निषेध्यता, ऋतु अनुसार मैथुन, ये सभी हमें पहले बता के समझाना पड़ेगा. प्रॉपर काउंसलिंग एंड हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट हियरिंग what the patient want to tell. Half of the treatment will be done by history taking itself, because proper history and etiological निदान परिवर्जन हो जाता है, तो ट्रीटमेंट आसानी से हो जाए. Then अनल्प शुक्र दृष्टि में
इसके बाद पूर्य शुक्र दृष्टि में हमें चंद्रप्रभा वटी काम आती है, चंदनासव बहुत काम आता है। तो चंदनासव के प्रयोग से भी बहुत सारे कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और परुषक आदि गण नहीं मिलता है तो परुषक फल तो आसानी से मिल जाएगा। उसको भिगो के रखने के लिए बोलना है और सुबह उसको पीने के लिए बोलना है। और वटादि सिद्ध घृत शमीम अश्वत्थ प्रयोग जामनगर में स्टडी हुए हैं, तो शमीम अश्वत्थ प्रयोग का भी हम घृत प्रयोग का भी हम लाभ उठा सकते हैं। और क्षीण शुक्र दृष्टि में क्षीणे शुक्र करी क्रिया आप्यायन बताया है, तो उसके हिसाब से हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। वात पित्त शामक और धातु क्षय के हेतु जो है क्षयम गच्छत्यानशनात्, तो उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हम इसमें लाभ प्रयोग क्षीर बस्ती के प्रयोग में बस्तांड बस्ती यूज कर सकते हैं। दूसरा है द जैक फ्रूट सीड्स, तो उसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जब यूज करते हैं। तो एकल द्रव्य प्रयोग के अंदर में दिखाया। तो क्षतावरी क्षीर भी हम यूज कर सकते हैं। और जिस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसमें मांस रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। देन मूत्रपुरी सुगंधी जो होता है, तो यूरिनरी सुपर इम्पोज्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फिस्टुलेशन हो सकते हैं, सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। तो उसमें के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट पहले सर्जिकल कर रही है, क्योंकि क्षारोपुंसत्वोपघात कराणाम बोला है, तो क्षार प्रयोग हमें क्षारीय द्रव्यों का खाना और प्रयोग में यूज करना वो अवॉइड करना चाहिए। तो इसके बाद शस्त्र क्षार अग्निकर्म अवॉइड करने के लिए बोला है, मुष्कयो हो वृषणयो हो ये सभी, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके अलावा चित्रकारी और जो भी द्रव्य अष्टांग हृदय में बताया गया है उसका यूज बहुत बेनिफिशियल है। देन रिसर्च आउटकम से हमें ये पता लगता है कि स्पेसिफिकली कौन से कंडीशन में कौन से सिंगल ड्रग हमें सेलेक्ट करना है। कपिकच्चू यूज कब करना है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने और मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, यष्टि मधुस्वैमन क्वालिटी बढ़ाने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट लाने के लिए। शतावरी एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसमें आईटी सेक्टर के लोगों में शतावरी का ग्रोथ का प्रयोग हम करेंगे तो अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। अगर उनका कारण स्ट्रेस रिलेटेड है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो उनमें भी लिबिडो लॉस ऑफ लिबिडो पाया जाएगा, तो उसका भी ट्रीटमेंट हमें ये देख के करना पड़ेगा। उसके साथ हम जटामांसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा रक्षोग्न द्रव्यों का भी इसमें काम आता है। जब आगंतुक हेतु होते हैं तो उसमें रक्षोग्न द्रव्यों का भी प्रयोग यूज कर सकते हैं। और हाइपोऑस्मैटिक स्वेलिंग या रिड्यूस्ड एग्लूटिनेशन, मोटाइल स्पर्म्स, एनहांस मीन पीएच, ये सब होने के लिए हमें शतावरी जो तिक्त रस वाला द्रव्य है, गुड़ूची जैसा तिक्त रस वाला द्रव्य, नागेंद्र सर ने भी बोला, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गोक्षुर हमें यूज करना है तो रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल पर गोक्षुर आदि मोदक बना के देते हैं। पाया गया, मैंने 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी केस में मेरे एक पंचकर्मा सीनियर कोलीग ने करते हुए मैंने देखा है, उसने गोक्षुर आदि मोदक उन्होंने दिया था तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और स्पर्म काउंट में भी काफी सारे रिजल्ट आते हैं। ऐसे ही है सुवर्ण भस्म प्रयोग, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट स्टडी प्रूव है। अश्वगंधा एनहांसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टोस्टेरोन लेवल, मोटिलिटी, हाइपर विस्कस सेमेन, पिछल शुक्र दृष्टि, इन सभी कंडीशन में तिक्त कटु पौष्टिक अश्वगंधा का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके अलावा मुसली मैच्योरेशन प्रोसेस एंड लेटर फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में विशुष्क रेतसावस्था में यूज किया जा सकता है। सुवर्ण भस्म एक्ट ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल लेवल, स्पर्मेटोगोनिया डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में सुवर्ण भस्म का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। कोकिलाक्ष इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द स्मेल, इंक्रीज्ड विस्कोसिटी जहां पे भी होता है और रिड्यूस्ड फ्रक्टोज लेवल होते हैं, तो उस कंडीशन में हम कोकिलाक्ष के प्रयोग रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा हमें कॉम्बिनेशन देखना है तो इन्वॉल्वमेंट जब भी होते हैं तो उसमें कल्याण का कषाय दे सकते हैं, दशमूलपात दे सकते हैं, केवल व्यानवाद की दृष्टि हो, अपानवाद की दृष्टि हो उसमें, और ये सभी चीज क्षीरपाक में भी दे सकते हैं निरामीकरण के बाद। विदारी आदि कषाय दे सकते हैं, द्राक्षादि क्वाद दे सकते हैं, गुड़ूची आदि कषाय, धन्वंतर कषाय। अगर अभिघातज विकार है तो उसमें अनुबंधी अभिघातज विकार, लो बैक एक, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी रिलेटेड टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन,
ऐसे कंडीशन में हम धन्वंतरम कषायम, कुसुकुमार कषायम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि व्यानवाद की दृष्टि है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो अष्टवर्ग कषाय यूज कर सकते हैं। पुनर्नवाष्टक कषाय जहाँ पे रसपाचक की जरूरी है तो पुनर्नवाष्टक कषाय यूज कर सकते हैं। औषध कल्पास इसके अलावा है अश्वगंधा अवलेह, जमाम सतान, इसके अलावा है यशद का त्रिभंग भस्म बोल रहे थे, तो ऐसे ही यशद भस्म का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सुवर्ण भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है। और सारस्वत अरिष्ट भी तो सुवर्ण हम साइकोलॉजिकल कंडीशन में भी जो नींद की भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, डे एंड नाइट शिफ्ट वर्कर्स, आईटी सेक्टर में हस्बैंड घर आता है तो बीवी चली जाती है काम के लिए, तो ऐसे तो एक्टिव मैरिटल लाइफ भी हमें हिस्ट्री में लेना चाहिए। देन अश्वगंधारिष्ट, चंदनासव, चंद्रप्रभावटी, सारस्वतारिष्ट, ये सभी रिजल्ट लेते हैं। चूर्ण प्रयोग एंड इट्स इंडिकेशन मैंने पहले ही बता दिया रिसर्च आउटकम में। लशुन रसायन प्रयोग वो भी एक हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स, ऐसे कंडीशन में हम ये लशुन रसायन प्रयोग भी कर सकते हैं। मुसली चूर्ण, कोखलक्ष चूर्ण, हरितकी चूर्ण, शतावरी चूर्ण, ये सभी भी हम यूज कर सकते हैं। और प्रयोग में रसायन चवन प्रक्षवलेह, मदन काम्र लेह, तो वेंकटेश्वरा फार्मेसी है तिरुपति से, वहां का उनका प्रोडक्ट है मदन कामेश्वर लेह। नारसिंह रसायन केरलीय कंपनी में जैसे कि कोटकल, वैद्यरत्नम, एसएनए का बहुत अच्छा आता है। और अमृत प्राशघृत महर्षि आयुर्वेद का बहुत अच्छा आता है, और कल्याण घृत कोटकल का अच्छा आता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं, और मैंने जो यूज किया मैं बोल रहा हूँ, कोई स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ। सुकुमार फलसफी प्रॉपरली बनाया हुआ है तो वो निरामी करेगा। जैसे कॉम्बो पैक मैंने पिछले सेक्शन में भी हमने बोला था, मैं ऐसे ही हमेशा बोलता रहता हूँ, कॉम्बो पैक है, मेल के लिए भी यूज करो, फीमेल के भी यूज करो, बच्चे के लिए भी ग्रहग्नम देहवर्धनम बताया है। तो त्रिवृत अवलेह का प्रयोग नित्य मिलता है। स्वादिष्ट चूर्ण कामेश्वर मोदक ये सभी बताए गए हैं। धन्वंतर तैला, आवर्तित क्षीरबल तैला, स्वचालित तैला, त्रिगोपाली में इंडिकेशन है, उसमें सर ने बहुत अच्छे उसका प्रयोग पता कि सिखाया, हमें जो अनुभूत है वृद्ध वैद्यों से सीखने के लिए बोला है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी काम आता है। क्षीरबला तैला ये सभी बताए हैं। पुष्पधन्वा रसवित नागवली स्वरस, जो बहुत सारे पेशेंट में मैंने दिया है, बोलते हैं को भी वही दिया, मुझे भी वही दिया, मेरे पति जी को भी वही दिया, पति परमेश्वर को, क्या सर ये कॉमन मेडिसिन हमारे ऊपर चला रहे हैं? तो अनुपान भेद से बदल देते हैं मोड ऑफ एक्शन, तो इसके हिसाब से हम पुष्पधन्वा रस यूज कर सकते हैं। लिबिडो बूस्टर है, हार्मोन सिक्रेशन को बढ़ाता है, एट द सेम टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा। मगर इंप्रेग्नेशन चाहिए तो ऋतुकाल संगमन स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, पूरे महीने ब्रह्मचर्य रखो, ऋतुकाल संगमन करो सिर्फ। देन कामिनी विद्रावण रस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम आएगा। लैक ऑफ लिबिडो होगा, इंपोटेंसी होगा। मगर ये कामिनी विद्रावण रस या कोई भी अफीम के द्रव्य है तो उसके प्रयोग में हमें थोड़ा ख्याल रखना ये पड़ेगा कि वो एडिक्शन ना हो जाए। तो उसको विड्रॉवल करते वक्त पेशेंट स्लीप डिस्टर्बेंस बोलेगा तो हमें बाकी जटामांसी वगैरह का प्रयोग, अश्वगंधा का प्रयोग ये सब लाना पड़ेगा। बेटर नॉट टू यूज सच प्रोडक्ट्स। देन वृक्ष गुटिका नागवली सरस मैंने प्रयोग पहले ही बता दिया था। ये तो मैंने मॉडल के लिए डालना है करके डाला है, मतलब अच्छा आर्टिकल है ही, बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स थे, बिकॉज लैक ऑफ एलाबरेशन हो जाएगा, बहुत नहीं बोलना है, भी नहीं बोलना है, मैंने एक ही डाला है। ठीक है, तो आगे करके अभी ये तो आपको सबको पता है कि खसखस है, अश्वगंधा है, पिपली है, और जैकफ्रूट के बीज है, और उसके बाद हमें मिलता है लसन है, कोकोनट है, और अनियन पलांडू है, ये सब श्वेत मुसली है, पुत्रंजीवक है, कपिकच्छु बीज है, और ये सभी खाद्य द्रव्य है, जो भी है वृक्ष द्रव्यों के परिवार में देना। तो जिसकी तो किंचित द्रव्यम चक्रपाणी ने जैसे बताया, ऐसे ही हमें
Sir, you are muted, sir. Voice, no voice there. Hello? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, now audible. Yes. पेशेंट के लाइफ में और यूज ऑफ आचार रसायन हमें प्रॉपरली सिखाना है। सत्यवादिनम अक्रोधम, दो हम मान नहीं सकते ऐसे पूरा 100%। सत्यवादिनम अक्रोधम, तो ये जो भी है उसमें बताया जाता है कि यू वर्शिप नॉट इवन गॉड्स, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसकी बाद अतिथि देवो भव भी आती है। तो ये करने के लिए बोलना है माता पिता की the worship or take care of them, go and talk with them, at least go to them, respect them, your infertility will be half treated. So उनके आशीर्वाद से भी आगंतुक हेतु टल जाते हैं। तो देन वाजीकरण सुहृद परिषद मैंने पहले बताया, स्वस्थ व्रत अनुपालन करने के लिए बोला है। तो जो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसको अवॉइड करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी बताया है वो फॉलो करना है। दिनचर्या ऋतुचर्या अनुपालन करने के लिए जैसे जैसे ऋतुओं में ऐसे ऐसे बोला है वैसे वैसे करने से अधारणीय वेग अवॉइड करना है। पुरुष रेतसाम, तो वो देखना है। त्रयोपस्तंभ परिपालन करते हुए साइकोलॉजिकल एंड हेल्थी सेक्सुअल लाइफ लीड करें, ऐसा आशा रखते हुए कल्प अपने अपने तो शिल्पा जी। Yes, sir. Yes, yes, yes. धन्यवाद। Hope I have not bored or disturbed you in the sessions. No, it's okay. It's okay, sir. It's a really nice presentation. I think many more kalpats today you have described here to our Vaidyas and faculties, and it will definitely help in the field of Vajikar or in the field of infertility, because infertility is a like now burning issue. It is like pandemic in gynecology. Infertility and PCOD both are the very much common issues nowadays, and so I think today's session was very fantastic. All the speakers. Just I call upon our chairman, sir. Just within 2 minutes, we are ending the session. So, Dr. Nagendra, sir, please. Yes, sir. Your voice. Yes, yes. Thank you, Shilpa ji, madam. Huh. It is a wonderful session taught by the two professors, Dr. Pramod Kulkarni sir, expertise in Roganidana and Panchakarma, even Rashishastra. Sir has given a basic definitions of Prishya, Vajikarana, Rasayana, everything, and shared much of the experiences. I am very much thankful to sir, because it is this information is needed for the youngsters, researchers. Sharing of the experience is very important. Okay, next coming to the Professor Ashokan sir, the extensive at the outset I congratulate both of Kulkarni sir and Ashokan sir, and the extensive presentation of Ashokan sir started with the definition of Vajikarana. The most of them were understanding Yena Narishu Samartyam Vaji Vallabhatinara. But Shushruta has clearly given a definition in the Sutrasthana 9th shloka in 8 by 8 shloka as mentioned. Vajikarana Tantranama Alpadushta Vishishka Retasa Apyayana Prasadana Upachaya and Janana Nimittancha
praharsya janartancha. Here we try to understand Vajikarana is not restricted to therapeutic aspect. Vajikarana is it is for healthy life also, to maintain the healthy sex also. He mentioned praharsya jananartancha. We have to use daily the Vajikarana dravyas. Then coming to the sir, as Ashokan sir has given extensive yogas, Vajikarana yogas, starting from the Ashtavida Shukra doshas, has given Vataja, Pittaja, Kafaja, a very type of the Shukra dosha has given the formulations, and even the condition wise, the oligospermia, azoospermia, and the libidial dysfunctions, ED, and premature ejaculation. Most of sir has covered almost all formulations in the field of Vajikarana. The thing is, most of the formulations which are not having Russia as a Falashruti, some of the formulations are very wonderful. They are working. So in my practice of 15 years of in the field of Vajikarana, I used to I use some of the formulation I will quote here. I try to quote Bringarajasava. Bringarajasava, it is a Falashruti is a dhatu. It is indicated in the dhatu kshaya and pushtida. The in Bringarajasava and along with Kumari Asava. Kumari Asava, Falashruti is mentioned as Russia. And if you go for the role of SHBG, sexual hormone globulin, binding globulin, SHBG, because why these two formulations are selected means these two formulations are acting on especially of Ekrit. SHBG, this hormone, there is a protein hormone which is produced in the liver. And also the role of SHBG is very important because it binds the testosterone. Testosterone is very important hormone for the production of the sperm. When it binds the testosterone, testosterone is inactive. It binds the testosterone, dehydrotestosterone. And remaining testosterone, that is called free testosterone, it is very active. It exerts the effect. It inserts the cell and it exerts the effect. That's why when the SHBG level is very increasing and free testosterone level is decreasing, then there is a development of the clinical presentation like gynecomastia, like and also chlamydia, and maybe result in the infertility. That's why these two combinations, in Bringaraja is a Rasayana, and sir has explained the concept of Rasayana and Russia. It was clearly explained in the Bhava Mishra. Jaravyadinasham Vayasaha Stambanam Chakshusha Brahmanam Rushyam Tad Rasayanam. Bhava Mishra is clearly mentioned. If you take Rasayana Dravya, definitely it is Chakshusha. It is Rushya Dravya. And most of the stress-oriented stress is one of the causative factor for the oligospermia and oligospermia, Kshina Shukra and Shukra dosha. And in that type of condition, we have to use some of the dravyas of psychotropic drugs. The drugs which are acting on Manas. Manas and Shukra, it is a very similarly means related, very much related, because if you see the properties of Rusya Dravya, Etkinchit Madaram Siktam, Brahmanam, Balavartanam, Arshanam Manasachaiva, Sarvam Rushamachati. On the basis of this principle, general principle, Arshanam Manasachaiva. Manas is a very good component, very important component while treating the Shukra dosha. And Shukra dosha in properly, Shukrasya dosha, Klaibyam Harshanam. Startingly as mentioned, Klaibyam and Harshanam. These two the clinical conditions which affects the Shukra dosha results in Klaibya and Harshan. Klaibya is impotency, Harshana means premature ejaculation, you can try to know. And these two conditions, then also the Bija dosha, the concept Bija dosha, Bija Dushti concept, it is already established in our science very extensively. But how far means Nachasya Jayate Garpaha, Bija Dushti is, you can consider Dhatu Rupo Bija Shukraha. Bija is nothing but sperm. Dhatu Rupo Shukraha. And also, Bija is Nachasya Jayate Garpaha, it result in infertility, and also the genetic information.
If the patient is suffering from the clypea or infertility, or some of the information will taken over to the next generation, the next offsprings. And also next also he mentioned sapatyam sadharam bhadyate nara. Ashokan sir is clearly mentioned sapatyam sadharam bhadyate. Not only the Shukra dosha affected the individual, it affects the more family also. That's why you have to take care of the Shukra dosha and Vajikaranas. And also one of the preparation, a simple preparation which is mentioned in Chakradatta, that is Gokshura, Tilagokshura Siddha Siddha Yoga. Tilagokshura Siddha Yoga. It is a very simple preparation. All of you know about the Gokshura. It is simple because much of the combinations consist of more than 50 to 60 ingredients and 100 ingredients. If you take Chavanaprasha, more than 100 ingredients. And if you see the simple preparation and single drug usage, it is very benefited much. If you say, think of Tilagokshura Yoga, Gokshura is clinically it has proved it is a worker for the, it enhances the sperm count and it enhances the motility and all seminal parameters. The thing is, and Tila is also Shukrala, that Krishna Tila is Shukrala. These two drugs, when processed with the Chagakshira, especially he mentioned Chagakshira, whereas Chagakshira is, he mentioned Shukrala. In Rajanikuti, he mentioned Chagakshira is Shukrala. Kayadevani. So these two ingredients, when processed with the Chagakshira, it is Shukrala, means it enhances the sperm count also. This combination, specially mentioned in Chakradatta, it is Nishanda, importance. Because, and you mentioned Nashta Shukra, this combination, Nashta Shukra and Shukra Nissara, what you call natural emission. That type of cases, you can mention this combination. It is very good combination. And also, in some of the papers has been published. The Ashokan sir has also given information about research articles which are published already. Much of the articles published regarding Shatavariguta, Patyagaraguta, and Virechana, role of Virechana in oligospermia, everything has, some of the researchers already published and revalidated the scientific views, classical views. Then one combination, on this very simple combination, which is the paper has been published on the basis of that I am telling, one Amalaki and Gokshura and Guduchi, 1:1:1, the Churda, and along with that, it has you can along with that you can add Sarpi and Madhu. Sarpi is 2 part and Madhu is 1 part. This combination, along with you can use these combination. It is effective in the oligospermia, astenospermia, and teratospermia also. And next, coming to the one of the general principle, Patya also we have to looking for Patya also. And next, with Masha Payasa, simple Masha Payasa is there. Masha Payasa, if you prepare Masha and Masha Payasa, simple Masha it works very well. It is mentioned in Charaka. As a Payasa, what you are prepared like that, you can prepare it. And try to understand where we lack in the, we will give the much information about the yogas and results and everything. The thing is, we will give the input and you will see the output. Only 2 things we are knowing. The in between the thing, it is called what we are studying, what you are practicing, it is called black box design. Because we are knowing the input, causative factors, everything we are knowing, and you are getting the results. Oh, I have treated oligospermia, azoospermia, everything you will get it. In between the thing, it is called, it is difficult to explain. It is called prabhava. The Chakrapani has mentioned it is a Rishyadinam prabhavastu balamashui. It is give the good effect and very fast effect also. It is the basic principle is prabhava. Whereas the Shushruta has given a beautiful explanation in the context of mode of action of the
Vajikarana Dravya, Drishya Dravya. He mentioned three principles. One is Bala and Guna and Prabhava and Bala Guna, four principles. He has given the explanation and examples. Guna Utkarshat, Sarpi Kshira Guna Utkarshat. So, and Sarpi and Kshira Guna Utkarshat, and also he has mentioned Swasneha Utkarshat. Whereas Masha Bala Utkarshat, Prabhava Sneha Utkarshat. It is very, he has given a very good example. Moreover, he has used the word Sneha, Swasneha and Prabhava Sneha. Swasneha is, it will increase the Swayoni Vardhana. It will increase the gunas of the Shukra, Swayoni Vardhana, the Kshira Shukra, how they are acting. Then you will come to the Masha. Masha is having Prabhava Sneha Utkarsha. Utkarsha means it enhances. So in the context of these two, we will try to understand, because the Grita is consist of, it is a good source of antioxidant and also polyunsaturated fatty acid. Polyunsaturated fatty acids consist of. The sperm membrane consists of the rich in polyunsaturated fatty acids. That's why Grita is Swayoni Vardhana and Guna Utkarsha. And Prabhava Utkarsha, Masha is also in the context of, while explaining the Masha, it is equivalent effect of the Atmagupta. Atmagupta Tulya, and it is similar to the Atmagupta effect. The Shushita has mentioned. So Atmagupta, it is a rich source of the Kapikachu, what we are calling. Kapikachu is consists of phytoconstituent L-DOPA. It is a neurotransmitter, what we are expecting. This is, we are not able to explain how, but in Ashwagandha, especially you are mentioning especially stress-oriented disorders with special reference to the Shukra. And Ashwagandha, the research has been done regarding Ashwagandha. Ashwagandha will release the GnRH. That is why it works very well, especially the secreting of the hormones, stimulating of the hormones. And likewise, there are so many things to be evaluated for the new researchers. And these three presentations, they are given a very good feast for all the audience and all the researchers. They are encouraging presentations. They are given much information, and also they are thoughtful, thought-provoking presentations. And finally, coming to the basic principles of Shukralai Jivanaschaiva, Brahmanai Balavardhanai, Shira Sanjanaschaiva Payaha, Siddham Pratak Pratak, Yuktam Goduma Churnena, Sagratak Shautra Sharkaram, Paryayana Prayuktena, Ichitam Shukramakshay. This is the very simple, basic, principle-based formulation. You can use Shukra Dravya along, you can process with Kshira, you can add Grita and Sharkara and Kshodra, there are all Shukralas. And if you use Jivaniya Dravyas, you can Jivaniya Gana, you can process with Kshira, it also good effect. And Brahmana Dravya, Balavardhana Dravya, Kshira Sanjana is Shukra, it is also Shukra Janana. Best example is Shatavari, it is Kshira Janana Dravya. Though it is, we are using much Shatavari in the female infertility. The sir is explaining most of the drugs can use both. Those who are treating Shukra dosha can treat female infertility also. It is very easy to treat because the mechanism is same. It is nothing but Ardhanarishwara, male and female. Ardhanarishwara. Like that, you can get the Kshira Janana, though the Shatavari is a good, the phytoconstituent is the phytosterols. It works on the estrogen, especially. The moderns also, they will use some estrogens for the enhance the sperm count. That is also as proved. I thank wholeheartedly the organizers giving an opportunity to chair this wonderful session. I thank all the experts and the participants. I hope all the Vaidyas in future may come up with the very good new formulation of Vajikarana and which can cater the needy. And thank you the organizers and the Ayush Tarpana Foundation. Thank you one and all. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you very much for your wonderful presentation. And as a chairman, very well said,
sir. So I think really it was like a knowledge feast for all of us, not only for the Vaidyas, but all of us, because every speaker has given his excellence. So I thank you very much, Dr. Awad sir, Dr. Kulkarni sir, Dr. Ashokan sir. Though he is traveling, but he is very committed to his work. So congratulations to all. And this was the 8th session of this International Ashtangas Ayurveda series. And I invite you all on the occasion of this National Ayurveda Day on 2nd November. Probably it will be in the afternoon. So there will be a big function on this occasion. There may be some felicitations, like we have just declared the Lifetime Achievement Award for Dr. Awad sir, then the Best Teacher Award, then some competition we held. So there will be much more things are there. So I invite you, all of you, on this occasion. So I will send you the invitation also, especially. Thank you very much all. Now we are ending the session. Okay, sir. Namaskar sabhi ko aur aabhar sabhi ka. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, definitely. Thank you. Happy Deepavali to all.